संकलन प्रकाशित हो चुका है और इसके अतिरिक्त शोध अनुसंधान से जुड़े हुए भी प्रकाशन आपके हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने उस साहित्यिक अभिरुचि का निरंतर परिष्कार कर रही हैं और हमारी इस लेक्चर सीरीज से और कम्युनिकेशन टुडे के संपादकीय टीम में भी आप सक्रिय रूप से पिछले कुछ वर्षों से काम कर रही हैं। मैं डॉक्टर उषा साहनी से अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। डॉक्टर उषा साहनी। आभार सर। माँ शारदे के श्री चरणों में 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना. Good evening and welcome to one and all present here. It's the 28th year of Communication Today, a media quarterly bilingual journal, which was initiated by the most renowned media academician, Professor Sanjeev Banavat. Today, we all have assembled here for the 106th webinar in collaboration of Communication Today and Bharati Vidyapeeth. And this collaboration began after the completion of 100 webinars under the umbrella of Communication Today. I wish to share an information here that the topic of ours is Hindi in media mein Hindi. And why I'm pressurizing here is because when Professor Bhanavat took this determination that he is about to start a journal, he took a decision that it has to be in both the languages, Hindi as well as English. Whereas at that very moment, more of the works, more of the journals were coming in only one language, that was English. So he had already started it long back, promoting the language which is Hindi, our mother tongue. And this particular journal has really given a base to all the students, the scholars, academicians, as well as the media practitioners also, so that they can actually express the insights, intellectual thoughts of theirs, and many topics with the analysis that what that particular topic is all about and how it is contributing to the society in black and white through this media communication today journal. Professor Bhanavat has also taken an initiative to come up with many special issues. To name a few, recently he completed with Mrinal Sen 100 Centenary Tribute, and many more like COVID-19 and media, media literacy and societal well-being, 100 years of media education in India. Many more are there in the same sequence. The new association of webinar series under the supervision of Professor Bhanavat and Professor Hoda is truly adding up in enriching the treasure of media education. Also, the YouTube channel of Communication Today is active as usual, providing all the webinars recordings to watch whenever the audience finds time and needs to get the information regarding a particular topic which they want to work upon, or maybe for research purpose or for a study purpose. As we all know that today the topic we are going to discuss and the insights that we are going to get benefited by the eminent speakers, that is Hindi in media, the challenges and the opportunities. Of course, I'm a student of English literature, so I'm using more of English, but then I'm comfortable with Hindi as well. But then these facts I'm going to share in bilingual format only. जब हम इस भाषा की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, तो एक हमने ये कहा ये भाषा है, किंतु आज के तारीख में हमें पता है कि more than 40% of the people of India, they are working in Hindi, talking in Hindi and understands Hindi well.
तो 40% से ज्यादा लोग अगर इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी रीजनल भाषाएं भी हैं, किंतु उसका जो महत्व है वो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हम उसी भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. सो फॉर मी आई बिलीव दैट दिस इज नॉट अ लैंग्वेज, रादर इट इज एन इमोशन. ये एक भाव है, और हम जब भाव के साथ में अपनी बात को संप्रेषित करते हैं तो वो जिस सक्षमता के साथ दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, उसका एक अलग ही आनंद होता है. As Aristotle also had said, man is a social animal, and this particular social animal, we human beings, we are all dependent upon something which we need to express and share. While we talk about expressing and sharing, of course we need a medium, and this medium has been actually utilized by the digital platform so well, because आज की तारीख में जहां हम कहते हैं कि हर चीज का वैश्वीकरण हो गया है, इस भाषा का भी हुआ है, और इस भाषा को बहुत अच्छी तरीके से इस मीडिया ने, इस इंटरनेट एरा ने, वर्ल्ड ने प्रमोट किया है. मैंने जब लिखना शुरू किया था तो ओपन बुक्स ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जिस पर सब हिंदी भाषी लोगों ने अपने रचनाओं को प्रेषित करना शुरू किया, और 1000 से ज्यादा लोग उस प्लेटफॉर्म पर हिंदी में बात करते हैं और हिंदी को ही पढ़ते हैं और समझते हैं. तो मुझे लगता है कि वो तो एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ, लेकिन ऐसे न जाने कितने प्लेटफॉर्म्स हैं. हम टीवी की बात करें, हम सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात करें, हर प्लेटफॉर्म पर हिंदी एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसकी जो एक दूसरे को समझने का एक भाव एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है. और उसी में मैंने आज आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इफेक्टिवली दिस मीडिया, दिस digital era, this media is actually helping to promote this language. So I found that sentimental analysis is happening, and that sentimental analysis is happening throughout. uh, Irrespective of the fact, we talk about education, we talk about marketing, we talk about policy making, even the basic needs of the society. Unemployment hai, fighting the riots also, terrorism also, wherever the importance of this language is really growing. एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मुझे ये लगा, ये सोशल मीडिया, ठीक है कुछ अपवाद है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत हद तक बहुत बेहतरी के लिए हम इस हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जहां पर कि अपने यूथ, सबसे स्ट्रांगली यूथ उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, और जो हिंदी में अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंसर्स एज वेल. बड़े ब्रांड्स, दे आर कॉन्टैक्टिंग देम सो दैट they can reach to the common people. So we are understanding, even Sarkar bhi is working upon entire thing so that everything can come in this language. Hindi ko promote karke media के through सब तक पहुंचाना, and which is actually beneficial, क्योंकि हमारी ये भाषा है और हमें इसे जीवित भी रखना है और इसको महसूस भी करना है कि इससे हम और कितना अच्छा प्रयोग कर सकते हैं और अपनी समाज को और क्या क्या दे सकते हैं. So this was something which came to my heart and mind, so I thought I will share it before our eminent speakers can talk about it. So closing with that, once again I welcome all the participants here, those who are joining this virtual platform to attend this webinar. And also I welcome the eminent speakers of today, प्रोफेसर संजय द्विवेदी, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी, जिनको हम पहले भी एक बार सुन चुके हैं, एंड मिस्टर तरुण शर्मा इज ऑल्सो विद अस. सो आई वुड थैंक ऑन बिहाफ ऑफ कम्युनिकेशन टुडे एंड भारती विद्यापीठ, एंड वेलकम यू ऑल. ओवर टू हुडा सर. धन्यवाद उषा जी आपके इस प्रारंभिक उद्बोधन के लिए. सही कहा आपने कि हिंदी में हमारी आत्मा का निवास होता है. हिंदी वस्तुतः इस राष्ट्र की धड़कन है. हमारे देश का पूरा स्वाधीनता संग्राम हिंदी के माध्यम से बहुत ही सार्थक तरीके से लड़ा गया था. इसके पूर्व कि मैं अपनी बात को विस्तार दूं, मैं भारतीय विद्यापीठ के निदेशक प्रोफेसर एम एन होड़ा जी से अनुरोध करूंगा आप सभी के स्वागत के रूप में अपने कुछ भावनाएं प्रकट करने के लिए. प्रोफेसर होड़ा मूलतः कंप्यूटर साइंस के विशेषज्ञ हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल जो विज्ञान और तकनीक से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रकाशन सिंगापुर के स्प्रिंगर के माध्यम से हो रहा है,
अपने आप में अपने विषय के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित जर्नल के रूप में पिछले कुछ वर्षों से इसने पहचान बनाई है। भारतीय विद्यापीठ में आपके उस योगदान को जिस तरह से आपने, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही मुझे वहां जाने का मौका मिला था, विशेषकर मास कम्युनिकेशन भैया डिपार्टमेंट को जिस तरह से आपने शेप दी है, वो हाँ अपने जी आप भैया में बताओ, हुक्म इनकी करो। कार्य क्षमता का प्रतीक है। और वहीं ये हमने तय किया था कि कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय मतलब पर्ची नहीं है इनके विद्यापीठ पास। संयुक्त रूप से इस आयोजन को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं यार प्रोफेसर डेट हुड्डा से कब नहीं अनुरोध बनेगा करूंगा भैया, कि वे आप इस सभी साल का का बनेगा। ये नवदीप जी आपका शायद ये हाँ अनम्यूट कर डेट का तो लीजिए बड़ा आप। मुश्किल है भैया, नवदीप जी, इस साल का। नवदीप प्रियंका जी आप आपके म्यूट कर दीजिए ना। प्रोफेसर हुड्डा से अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार प्रकट करें। जी सर। Thank you so much, Banawal sir. Very good evening to all of you. At the outset, I take this opportunity to welcome you all in 106th National Webinar under Media Lecture Series, for which Banawal sir is always innovative. And this 10th January, the topic we have decided, Media में हिंदी चुनौतियाँ and संभावनाएं. So, मैं बहुत गौरवान्वित हो रहा हूँ अपने आज के हमारे एक्सपर्ट्स जो आज हमारे बीच हैं, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली, जो अपने आप में एक विश्वविख्यात इंस्टीट्यूशन है, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी, जो लिटरेरी एंड क्रिटिक कॉलमनिस्ट हैं, एंड मिस्टर तरुण शर्मा जी, जो रेजिडेंट एडिटर हैं दैनिक भास्कर जयपुर के। आप सबका आज के इस 106वें नेशनल सेमिनार में स्वागत है सर। जैसा कि बनावत सर और डॉक्टर उषा ने बताया कि 10 जनवरी को हर साल वैश्विक स्तर पे विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी भाषियों के लिए यह गौरवपूर्ण दिन होता है, क्योंकि दुनिया भर में हिंदी भाषा के जानकार रहते हैं। उन सभी हिंदी भाषियों को एकजुट करने के उद्देश्य से जो दिन मनाया जा रहा हो, वो हम सब भारतीयों के लिए, जहां हमारी मदर टंग हिंदी है, कितने गौरव का विषय है, कितने गौरव का पॉइंट है, वो हम सब समझ सकते हैं। और हमेशा ये कहा जाता है कि अगरचे हमें इंग्लिश आती है, मैं एक इंटरनेशनल जर्नल का फाउंडर एडिटर इन चीफ हूँ जिसको हमने शुरू किया, और वो सच में इंग्लिश में निकलता है और इंग्लिश में ही निकल सकता है, लेकिन जब तक हम अपनी बातों के बीच में हिंदी नहीं बोल लेते, जब तक जो हमें दिल से दिल को जोड़ने का काम है, या जो अपनी बात जिस फीलिंग और एहसासात के साथ हम समझते हैं उसी एहसासात के साथ हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएं, ये शायद पूरी ईमानदारी से अदा नहीं हो पाता। इस वजह से जो हमेशा हमें कोई ऐसी बात जो दिल से कनेक्टेड हो और उसी पैशन के साथ, उसी सेंटिमेंट के साथ अगर हमें औरों तक पहुंचाना है, अपनी ऑडियंस तक, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना है, तो हिंदी ही हमारा माध्यम बनता है। वैसे भी आप देखें तो जो स्वीटनेस हिंदी में मिलती है, जो प्यार हिंदी में मिलता है, जो किसी एक सिचुएशन को एक्सप्रेस करने का मल्टीपल वेज, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हिंदी में मिलता है, वो शायद बहुत सारी बाकी भाषाओं में न मिले। और इससे ज्यादा गौरव का क्या विषय हो सकता है कि बनावत सर ने आज से 26 साल पहले जिस जर्नल की शुरुआत की, आप सोचें कि हिंदी में बाइलिंगुअल शुरुआत की, और वो 26 सालों से इस तरीके से कंटिन्यू किया जा रहा है। इमेजिन करें कि एक रिसर्च जर्नल जो हिंदी में बाइलिंगुअल, प्राइमरीली बाइलिंगुअल है, लेकिन हिंदी में चल रहा हो, 26 सालों से वो कंटिन्यूटी और सस्टेनेबिलिटी के साथ चल रहा हो, ये अपने आप में एक हिंदी की बहुत बड़ी सेवा है। और मैं इस वजह से मेरी 4 पंक्तियां हैं जो मैं हमेशा कहता हूं, नहीं तो बनावत सर ने तो अपना एकेडमिक कैरियर पूरा कर लिया, अब उन्हें इन सब की कुछ जरूरत नहीं थी, वो जस्ट एंजॉय कर सकते थे। बट उनका कमिटमेंट, उनका पैशन, जो अपने डोमेन के लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए, फेलो प्रोफेशनल्स के लिए, फेलो एकेडमिशियंस के लिए और रिसर्च के लिए, और जो बच्चे इनसे जुड़े हुए हैं उनके लिए, जो पैशन है, जो कमिटमेंट है, यही वो एनर्जी इनको देती है जिस एनर्जी की बुनियाद पे 26 सालों से ये बिना किसी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के, चूंकि मैं जर्नल निकालता हूं, मुझे उनकी डिफिकल्टीज पता हैं, मुझे मुश्किलें पता हैं कि कितनी मुश्किल होती है, उन मुश्किलों को वो अपने इंडिविजुअल
एफर्ट्स और अपने जो टीम में उनके साथ लोग हैं, सिर्फ उसकी वजह से बिना किसी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के कंटिन्यू कर रहे हैं। यही आप अपने आप में एक मल्टीलिंगुअल होने की वजह से एक हिंदी की बहुत बड़ी सेवा है। और उसके साथ आप देखें, कोविड-19 जब आया तो हम सारे लोग बहुत परेशान थे, और इसी कोविड-19 के बैकड्रॉप में जून 2020 में एक टेक्निकल वेबिनार की सीरीज हमने शुरुआत की थी, जिसकी 140 एडिशंस हमने किया। जब बनावल सर को मैं मिला पर्सनली, मैं जानता हूं उनको बहुत दिनों से था, चूंकि उनका काम इतना विस्तार पा चुका है कि आप जहां बात करें लोग बनावल सर को जानते हैं। इनकी 2-3 सीरीज मैंने जो इन्होंने वेबिनार शुरुआत की थी कोविड के बैकड्रॉप में 2020 में, वो मैंने अटेंड किया। मुझे लगा ये भी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, और इनके पास कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। ये सिर्फ फ्रेंड्स आपस में, जैसे डॉक्टर उषा हैं या और जो फ्रेंड्स इनके साथ जुड़े हैं, उनके सपोर्ट से ये काम कर रहे। तो पहली बार जब मेरी मुलाकात हुई बनावल साहब से मेरे कैंपस में, तो मैंने ये ऑफर किया कि आप जिस तरह की सेवा कर रहे हैं, मेरा दिल चाहता है मैं उससे जुड़ूं। और वो जुड़ने के बाद 101 जो 101वां एडिशन था, उससे हम इकट्ठे काम कर रहे, और बहुत दूर तक हमें इस मैसेज को ले जाना है, इस सीरीज को ले जाना है। तो ये अपने आप में जो सेवा है, ये हमारे पीयर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ी सेवा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब लोग सोचते हैं कि मुझे अपने से ज़्यादा अपने फेलो कलीग्स की, अपने घर से ज़्यादा अपने नेशन की, अपने से ज़्यादा अपने चमन की फिक्र करनी चाहिए, तो 4 पंक्तियां लिखी थी कि आशियाने से बढ़कर है फिक्रे चमन, आशियाना तो फिर बना लेंगे हम। आशियाना अपने घर को कहते हैं, चमन अपने वतन को कहते हैं। अगर मैं आज हिंदी दिवस पे इस हिंदी को सब्जेक्ट का इशू बनाऊं, तो ये हिंदी हमारा एक चमन है, जिसको बोलकर हम सब अपने को खुशबू, अपने अंदर एक खुशबू महसूस करते हैं हिंदी बोल के, कि आशियाने से बढ़कर है फिक्रे चमन, आशियाना तो फिर बना लेंगे हम, एक उम्मीद की लौ सलामत रहे, 100 दिए इस दिए से जला लेंगे हम। ये जो सीरीज है, ये हम सब लोगों को एक मैसेज देता है, हम सब लोगों को एक पॉइंटर दे रहा है कि इस तरीके की बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, अगर सचमुच हम हिंदी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, सचमुच हम चाहते हैं कि फेलो प्रोफेशनल्स को कनेक्टेड रखें। ऐसे वेबिनार्स के इम्पैक्ट की एनालिसिस टेक्निकल डोमेन में IEEE USA ने किया, और जो टेक्निकल सीरीज मैं चला रहा हूं वो भी एक वन ऑफ द कैंडिडेट सीरीज था। और फिर ये पाया गया कि अगर कोविड के बैकड्रॉप में इस तरह का नॉलेज डिसेमिनेशन सेशन नहीं होता, तो बहुत सारे लोग सचमुच डिप्रेशन में चले गए होते। उनको उस डिप्रेशन से निकालना और एक कंस्ट्रक्टिव पर्पस से उनको लगाना, उनको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड एक्टिविटी में जोड़े रखना, और उनको उनके सब्जेक्ट के डोमेन में एक नॉलेज का अपग्रेडेशन देना, ये इस तरह की नॉलेज डिसेमिनेशन सीरीज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पिछले 3 सालों में रहा है। और उसकी वजह से बहुत सारे प्रपोजल के बावजूद टेक्निकल वेबिनार सीरीज जो हमने चलाया सस्टेनेबिलिटी के साथ, उसको फ्रॉम ऑल अक्रॉस वर्ल्ड प्रपोजल्स इवैल्यूएट करने के बाद वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज डिसेमिनेशन इनिशिएटिव का अवार्ड मिला है। तो ये जो हमारी सीरीज है, जिसका आज 106वां एडिशन कर रहे हैं, ये भी ऐसे अवार्ड्स का पात्र है कि हमने जो सीरीज शुरू की है, इसने बहुत सारे लोगों को अपने थॉट प्रोसेस को बदल के एक जो नॉलेज शेयर किया, जो लोगों को इनलाइटन किया, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा है, इससे बहुत कुछ सीखने का मौका है। और मेरी यही आशा है कि ये सीरीज इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलती रहे, हम सब लोग जो उसमें अपनी आहुति दे सकें वो दें, और जिस भी कैपेसिटी में हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें वो करें। इसी सीरीज की कड़ी में आज का ये 106वां वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, और वो आज के इस हिंदी के विषय पे ऑर्गेनाइज किया गया हो कि मीडिया में हिंदी, इससे बेटर और क्या हो सकता था। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, and I'm also grateful to all my 3 valued speakers today who have joined on our invitation despite their busy schedule from their professional life, and are with us to enlighten us, and quite confident that this discussion will help us to draw lines further, that how in which way we will be in a position to face the challenges up front, and that too gracefully. So thank you so much. COVID is again coming. हमें अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से कोविड के आने की दस्तक दोबारा दिख रही है। तो इसका मतलब है कि जो इनिशिएटिव 3 साल पहले बनावल सर ने शुरू किया था, इस इनिशिएटिव की अभी उतनी ही कंटिन्यूटी और उतना ही रिलेवेंस बचा हुआ है जितना रिलेवेंस कोविड के वक्त था। तो हम सब लोग जो प्रिकॉशन है उसको अप्लाई करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
और कोविड को सिर्फ फैलाने से न रोके, बल्कि उसका जो डर लोगों में समाया हुआ है, कहा गया कि कोविड की बीमारी से जितने लोग नहीं मरे, उससे ज्यादा उसके डर से मर गए। तो इस तरह की सीरीज उस निगेटिव जोन से बाहर लाने में मदद करती है। सो ये जो हम आज बैठे हैं, ये उसके लिए भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमें पॉजिटिव रखा जाए, कंस्ट्रक्टिव रखा जाए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, stay vibrant and keep learning despite disruptions all around us. I wish you all the best. Over to you, Banawat sir. बहुत बहुत धन्यवाद होड़ा साहब। आपने कहा हिंदी दिल से दिल को जोड़ने वाली भाषा है, मिठास और प्यार की भाषा है, और आज इसी मिठास और दिल से दिल को जोड़ने वाली भाषा में क्या चुनौतियां हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पहले मैं भारतीय विद्यापीठ की सहायक प्रोफेसर पत्रकारिता जनसंचार विभाग में प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे अतिथियों का ई बुके से पहले स्वागत करें। प्रियंका जी। एंड ई बुके के लिए भी मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि प्रैक्टिकली ई बुके दिया करते थे फिजिकल मोड में। ये हो सकता है कि अमेजोन पे बुके बुक किया जाए और हमारे गेस्ट को डॉट टाइम पे वो डिलीवर हो जाए, लेकिन मैंने पंक्तियां लिखी हैं कि बुके का मतलब है कि हम इससे जिंदगी सीखें, इनसे कलर सीखें, इनकी खुशबू को अपनी लाइफ में महसूस करें। तो खुशबू एक ऐसी चीज है जिसको हम कहीं एक ज्योग्राफी और किसी एक शहर में गिरफ्तार करके, बंद करके, बांध के नहीं रख सकते। कहते हैं कि दिल बड़ी मुश्किल में है, कैसे इजहार करूं, दिल बड़ी मुश्किल में है, कैसे इजहार करूं, तू तो खुशबू है, कैसे गिरफ्तार करूं। तो ये खुशबू आप सब महसूस करें अपनी अपनी जगह बैठकर और खुशबू का आनंद लें, यही पर्पस है। थैंक यू सो मच। चलिए, ये जो पुष्प हैं, इनकी खुशबू होड़ा साहब के शब्दों में, ये विचारों की खुशबू के रूप में भी कहीं ना कहीं हमें इस यात्रा की निरंतरता को बनाए रखने में मार्गदर्शन देगी, कहीं ना कहीं कोई वो ऊर्जा प्रदान करेगी, जिससे जैसा होड़ा जी ने कहा कि ये अनंत की ओर यात्रा है, लगातार चलती रहेगी। तो यही ऊर्जा, सामर्थ्य और शक्ति हमको मिलती रहे कि हम जीवन की अंतिम सांस तक इस प्रकार के अकादमिक कार्यों से जुड़े रहें। आइए अब इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। इसके पूर्व कि मैं हमारे वक्ताओं को क्रमशः आमंत्रित करूं, बहुत संक्षेप में आज के इस विषय की थीम को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसा हम सभी को मालूम है कि 1975 जनवरी 1975 में नागपुर में तत्कालीन प्रधानमंत्री उन्होंने ये घोषणा की थी कि दुनिया भर में हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, हिंदी के प्रति उस अनुराग को व्यक्त करने के लिए और हिंदी को एक वैश्विक भाषा, क्योंकि उसमें क्षमता है, उसमें सामर्थ्य है, बनाने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की जाएगी। तो 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की और 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की। यूं हम बरसों से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में, जब ये राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था, उस रूप में मना रहे हैं। लेकिन विश्व हिंदी दिवस जो पहले मुख्य रूप से दूतावासों में, जो भारत के दूतावास है विदेशों में, वहां मनाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देख रहा हूं कि अब इसने बहुत बड़ा जनाधिकार अपना आधार बना लिया है और जगह जगह इस तरह के आयोजन होने लगे हैं। और हिंदी के महत्व, तरुण जी हमारे बीच में हैं, आज उन्होंने 2-3 ऐसी स्टोरीज छापी हैं विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर, जिसमें हिंदी के उस महत्व को, उसकी प्रासंगिकता को और उसके उस सामर्थ्य को कहीं ना कहीं अभिव्यक्त किया है। किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी लोकप्रिय हो रही है, न सिर्फ लोकप्रिय हो रही है, बल्कि उस खबर में उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि कितने लोग शीर्ष स्थानों पर भी पहुंच रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो मानसिकता है, ये कहीं ना कहीं बदलेगी। अभी कुछ दिन पहले मैं 12th फेल फिल्म देख रहा था, उसने भी जिस तरह से उस हिंदी को, वो जब आईएएस के साक्षात्कार में जा रहा है, तो किस तरह से हिंदी के प्रति जो उसका एक आस्था का भाव है, उसे कहीं व्यक्त करने का उसने प्रयास किया है, जैसा फिल्मकार ने दावा किया है कि एक सत्य घटना पर आधारित है। तो इस प्रकार के जो प्रयत्न मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदी को और अधिक सार्थकता देते हुए एक वैश्विक भाषा के रूप में शायद आने वाले वर्षों में बना पाए। लेकिन जब मैं कभी कभी, चूंकि मीडिया शिक्षण से लंबे समय तक जुड़ा रहा, तब जिस तरह की भाषा का प्रयोग मीडिया में होने लगा, क्योंकि जब हम पढ़ते थे
तब हमसे ये कहा जाता था कि आप आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को सुनिए। और दुर्गा प्रसाद जी और द्विवेदी जी वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने उस समय के जो हम समाचार वाचकों के नाम लूं, हिंदी में देवकीनंदन पांडे, अशोक वाजपेयी, या अंग्रेजी में लोदी करत्नम, मेलवडी मेलो जैसे हमारे साथ न्यूज रीडर्स थे, जिनको हम उच्चारण के लिए सुनते थे। के भार्गव जैसे समाचार वाचक, जिन्होंने विश्व उच्चारण कोश नामक पुस्तक लिखी, और जब वो जयपुर में आए, उनका फोन आया, तो मैं तो खुशी से उछल पड़ा। मैंने कहा साहब, मैं तो बहुत समय से ढूंढ रहा था आपको कि क्यों मुझे वो पुस्तक चाहिए, विश्व उच्चारण कोश। वो नवभारत टाइम्स के तत्कालीन संपादक थे नंद किशोर जी त्रिका, उनका संदर्भ लेकर के जयपुर आए थे। तो मैं देखता हूं कि किस तरह से उस समय के व्यक्तियों ने हिंदी के उच्चारण तक को लेकर के वो मेहनत करते थे। समय बदला, भाषा एक अपना प्रवाह है, जिस तरह के प्रयोग होने लगे, जिस तरह का इंग्लिश हमने बना दिया। और ये इंग्लिश केवल हिंदी की चुनौती नहीं है। मुझे मौका मिला देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी जाने का, वहां आयोजित अकादमिक कार्यक्रमों में जुड़ने का। जो क्षेत्रीय भाषा के, जैसे मराठी है, गुजराती है, कई भाषाओं के मैं आयोजनों में गया हूं, वहां भी कहीं इस बात पर चिंता प्रकट की गई कि जो अपनी भाषा की मौलिकता है, उस पर धीरे धीरे अंग्रेजी की प्रधानता बढ़ती जा रही है। तो अब ये हिंदी के प्रचार की शक्ति है या चुनौती है या संभावनाएं हैं, ये हमारे विशेषज्ञ, क्योंकि हमने अलग अलग क्षेत्रों से लिए हैं, टीचिंग से भी लिया है, मीडिया में जो लिख रहे हैं और स्वयं मीडिया में जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी उन संभावनाओं या चुनौतियों के बारे में बातचीत करेंगे। फिर एफएम की हम भाषा सुनते हैं। वो दौर था जब आकाशवाणी में किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए, उसके बारे में बाकायदा दिशा निर्देश जारी होते थे। लेकिन अब जिस तरह की भाषा है, बिल्कुल स्वतंत्र या उच्छृंखलता की पूरी पूरी छूट है। जो निजी चैनलों का विकास हुआ है, उसमें जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, और उषा जी ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में सोशल मीडिया की बात की थी, उसमें जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, और ये नई पीढ़ी में, हालांकि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें मातृभाषा को अधिक प्राथमिकता दी गई है, उसका परिणाम हमें कुछ सालों में देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको प्रधानता दी गई है, या उसको कहीं प्राथमिकता दी गई है। तो ऐसे दौर में जिस तरह के भाषाई प्रयोग हो रहे हैं, उसमें क्या हम आगे की जो हमारा एक रोड मैप है, वो तैयार कर सकते हैं। तो आइए इस विषय पर बातचीत करने के लिए हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को। संजय द्विवेदी जी मीडिया और मीडिया शिक्षण के एक जाने माने हस्ताक्षर हैं। जैसा मुझे याद है, सबसे पहले मेरी इनसे मुलाकात बिलासपुर में हुई थी। हमारे एक कॉमन फ्रेंड हैं, हमारे एक मित्र हैं, डॉक्टर शाहिद अली, उनके माध्यम से जब ये हरिभूमि में काम करते थे, उस समय एक रेस्टोरेंट में हम इनसे पहली बार मिला था। उस समय नहीं सोचा था कि शिक्षण में आपका प्रवेश होगा और एक लंबी पारी साथ में रहेगी। अनेक आयोजनों में मुझे आपका सानिध्य मिला है। तो संजय जी ने हरिभूमि, दैनिक भास्कर, नवभारत, स्वदेश आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं में काम करने का मौका मिला। और छत्तीसगढ़ में जब एक सैटेलाइट चैनल की शुरुआत हुई, G24 घंटे, उसके लॉन्चिंग टीम में भी आप सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। फिर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, वहां आपने कार्यभार ग्रहण किया और पत्रकारिता विभाग की स्थापना की। उसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में भी आपने काम किया। और बिलासपुर का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहां से आपने राजेंद्र माथुर की पत्रकारिता, हमारे जो नए इसमें विद्यार्थी जुड़े हैं, उन्होंने शायद नाम सुना हो न सुना हो, मुझे नहीं पता। राजेंद्र माथुर जी हिंदी पत्रकारिता के एक बहुत बड़ा नाम था, और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ मंच पर बैठने का सौभाग्य मिला है, उनका माल्यार्पण किया है। हमारे विभाग के एक सेमिनार में वो आए थे, और जयपुर से जब नवभारत टाइम्स की शुरुआत हुई थी, तब उनसे यदा कदा मिलने का सौभाग्य मिलता रहा, उनको सुनने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। तो राजेंद्र माथुर की पत्रकारिता पर आपने अपना पीएचडी किया, और भारतीय जनसंचार संस्थान, जो देश का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उसके आप महानिदेशक के रूप में भी 3 साल तक आपने काम किया, और उस संस्थान को एक नया स्वरूप देने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप FTII के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं, और देश के अनेक प्रमुख विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा और IP यूनिवर्सिटी, और कई ऐसे जो विश्वविद्यालय हैं, असम सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिलचर, उनके साथ भी आप उनकी बोर्ड ऑफ स्टडीज वगैरह से आप जुड़े हुए हैं। लगभग 3000 से अधिक लेख नियमित रूप से आप पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं, और लगभग 32 से अधिक पुस्तकों का आपने लेखन और संपादन किया है। तो मीडिया का लंबा अनुभव और शिक्षण का लंबा अनुभव, और अभी आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय, जो एशिया का संभवतः सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होगा, वहां प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं।
इस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और कुलपति के रूप में भी कार्य करने का आपको मौका मिला है। तो आइए, संजय जी का जो व्यापक अनुभव है और मीडिया में जिस तरह का हिंदी का प्रयोग हो रहा है, उन सारी संभावनाओं और चुनौतियों को आप किस रूप में देखते हैं? आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को। सर, आप अनम्यूट है, म्यूट कीजिए। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर एमएन हुडा जी, जो कंप्यूटर साइंस के बहुत जाने माने विद्वान हैं, आदरणीय प्रोफेसर संजीव भानावत जी, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जायसवाल जी, दैनिक भास्कर के स्थानीय संपादक तरुण शर्मा जी, डॉक्टर उषा जी, प्रियंका जी, आयुषी चोपड़ा जी, और इस आभासी माध्यम से जुड़े हुए सभी मित्रों, साथियों, बहुत ही अच्छे विषय पर आज बातचीत के लिए सर ने आमंत्रित किया। और डॉक्टर संजीव भानावत की जो मीडिया शिक्षा में उपस्थिति है, उसमें उनका जो आदेश है वो हम सब के लिए अध्यादेश हो जाता है। उनकी बात को टालना ये हम सब के लिए संभव नहीं। तो उस आदेश के तहत मैं विश्वविद्यालय से भाग के घर आया और आपके दरबार में हाजिर। मैं अपनी बात इस नोट से शुरू करना चाहता हूं कि आखिर महात्मा गांधी जो विदेश में पढ़े लिखे और बहुत अच्छी शिक्षा पाई, अंग्रेजों की आंख में आंख डाल के बात करते रहे, पर मुल्क जब आजाद हुआ, देश जब आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद एक पत्रकार उनके पास आए, तो महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि जाओ दुनिया वालों से कह दो गांधी अंग्रेजी भूल गए। आखिर गांधी ने ऐसा क्यों कहा? क्या वो हमसे आपसे कम अंग्रेजी जानते थे, या उनकी अंग्रेजी की समझ हमसे आपसे ज्यादा थी या कम थी? और गांधी ने कहा कि नहीं, मैं अंग्रेजी नहीं जानता, मैं अंग्रेजी भूल चुका हूं। उन्होंने शायद इसलिए कहा कि वो हिंदुस्तान के लाखों लाख लोगों को न्याय दिलाना चाहते। जब आप व्यक्ति की मातृभाषा में उससे बात करते हैं, उसकी मातृभाषा में उसको शिक्षा देते हैं, मातृभाषा में उसे न्याय देते हैं, मातृभाषा में से प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, तब आप एक मानवाधिकार उसके साथ करते हैं। भाषा सिर्फ ज्ञान का मामला नहीं है, भाषा सिर्फ धन उपार्जन का मामला नहीं, भाषा न्याय का मामला है। आज हम अपने देश में अपने नागरिकों को आजादी के 75 साल बाद भी न्याय अंग्रेजी में उपलब्ध कराते, उस शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी में उपलब्ध कराते, उनको ज्ञान की श्रेष्ठ चीजें अंग्रेजी में उपलब्ध कराते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र है और ये देश आजाद है। मुझे लगता है कि राष्ट्रपिता की जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा से हम बहुत दूर चले आए। इन 75 सालों में हमने आखिर क्यों अपनी उस शिक्षा के सारे सरंजाम हिंदी और भारतीय भाषाओं में नहीं खड़े किए? क्या कारण था कि हमने एक भाषा को एक बाधा के रूप में खड़ा कर दिया और पूरी की पूरी एक पीढ़ी को विकलांग बनते हुए जाने दिया? आज जब मैं सूचनाएं पढ़ता हूं, अंग्रेजी ना जानने के नाते कोई ट्राइबल बच्चा आत्महत्या कर लेता है, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रपिता की प्रतिज्ञा के साथ हम सबने विश्वासघात किया है। हम सबने, जब मैं कहता हूं, वो सब उसमें शामिल हैं जो शासन सत्ता और इस व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, या हम जैसे लोग हैं जो उसमें कहीं ना कहीं एक बौद्धिक हस्तक्षेप भी करते हैं। जहां तक हिंदी की बात है, हिंदी विश्व की सबसे बड़ी भाषा बन चुकी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वह कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी भाषा है। आप बताइए, हिंदुस्तान के 10 बड़े अखबारों के नाम बताइए, उसमें अंग्रेजी का कौन सा अखबार है? हिंदुस्तान के एंटरटेनमेंट के जो मीडिया के बारे में आप बताइए, वो किस भाषा में हो रहा है? वो हिंदी और भारतीय भाषाओं में हो रहा है। पूरा का पूरा हिंदी मीडिया ही नहीं, हम भारतीय भाषाओं की मीडिया को इसके साथ जोड़ते हैं। प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी भाषा हिंदी और भारतीय भाषाएं हैं। इंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी भाषा हिंदी और भारतीय भाषाएं हैं, अब बोलियां उसमें शामिल हैं। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? विज्ञापन की सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? फिल्म की सबसे बड़ी भाषा कौन सी है?
आप देखेंगे कि समाज को संबोधित करने की जितनी प्रवृत्तियां हैं, समाज से संवाद करने के जितने यंत्र हैं, जितने साधन हैं, उन सब की भाषा हिंदी और भारतीय भाषा है। अंग्रेजी कहाँ की भाषा है? अंग्रेजी सुप्रीम कोर्ट की भाषा है, अंग्रेजी हाई कोर्ट की भाषा है, अंग्रेजी नौकरशाही की भाषा है, अंग्रेजी भारत में उच्च शिक्षा की भाषा है, अंग्रेजी कारपोरेट की भाषा है। हिंदी और भारतीय भाषाओं को और उनकी शक्ति को न पहचान करके हमने अपने देशवासियों के साथ, देश के लोगों के साथ जो अन्याय किया है, उसकी कीमत देश आज तक चुका रहा है। और दुर्भाग्य कि इस बात को आज भी नहीं स्वीकारा जा रहा है। आज आप स्वतंत्रता आंदोलन की बात सर ने कही, भानवत साहब ने, चलिए स्वतंत्रता आंदोलन तो चला हिंदी और भारतीय भाषाओं में, कोई बात नहीं है। आप ये बताइए कि जो हमारा सबसे बड़ा कैंपेन है कम्युनिकेशन का, जिसको हम लोकतंत्र का महायज्ञ कहते हैं, लोकसभाओं और विधानसभाओं के चुनाव, वो किस भाषा में होते हैं? किस भाषा में हमारे राजनेता कैंपेन करते हैं? हिंदुस्तान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कहां पर राजनेता अंग्रेजी में सभाएं करके वोट ले रहा, बताइए मुझे। ये सबसे बड़ा कैंपेन है, इससे बड़ा तो कोई कैंपेन हो नहीं सकता, इससे बड़ा कम्युनिकेशन का कोई प्रयास नहीं। जब डोर टू डोर कन्वर्सिंग होती है, दरवाजे दरवाजे लोग जाकर के वोट मांगते हैं और बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, वो सभाएं किन भाषाओं में होती हैं, ये मुझे कृपया बताने का कष्ट करें। दूसरा, सिनेमा, हिंदुस्तान का आदमी कौन सा सिनेमा देख रहा है? तमिल का सिनेमा देख रहा है, तेलुगु का सिनेमा देख रहा है, मलयाली सिनेमा देख रहा है, बंगाली सिनेमा देख रहा है, उड़िया सिनेमा देख रहा है, भोजपुरी सिनेमा देख रहा है, हिंदी सिनेमा देख रहा है। तो मनोरंजन की भी हम सबसे बड़ी भाषा है। दुनिया का बड़े से बड़ा कारपोरेट हाउस अपना काम तो अंग्रेजी में चला सकता है, पर जब उसको मैदान में आकर कारपोरेट के लोगों को अपना उत्पाद बेचना पड़ता है, जब अपना सामान बेचना पड़ता है, वो किस भाषा में विज्ञापन बनाते हैं? इसलिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी की भी हम सबसे बड़ी भाषा है। दुनिया की बड़ी से बड़ी कारपोरेट कंपनियों को, मल्टी कंपनियों को हिंदी समेत भारत की 22 भारतीय भाषाओं में अपने विज्ञापन जारी करने पड़ते हैं, तब जाकर उनके प्रोडक्ट हिंदुस्तान के अंदर बिक पाते हैं। आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ। और हिंदी एक वैश्विक भाषा बन चुकी है, और हमें हमारी जो आत्महीनता है, जो हमारा आत्मदैन्य है, उससे मुक्त होना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कोरिया में ऐसा क्या दम है कि वो कोरियन में सब काम कर रहे हैं। फ्रांस में ऐसा क्या सुरखाब का पर लगा कि वहां पर अंग्रेजी कोई जानता नहीं और उनका फ्रेंच से काम चल रहा है। जापान का काम जापानी में चल रहा है, फ्रांस का काम फ्रेंच में चल सकता है, चीन का काम चीनी में चल सकता है। दुनिया के बहुत सारे इलाके अरबी भाषा बोलते हैं। आखिर हिंदुस्तानियों में ऐसी कौन सी बीमारी है कि अपनी भाषा नहीं बोलते? मुझे लगता है कि ये लंबे कालखंड की जो गुलामी है, उस गुलामी ने हिंदुस्तान के लोगों को मानसिक दारिद्र्य से भर दिया है। ये आत्मदैन्य है, अपनी भाषा बोलते हुए हमें शर्म आती। हमें लगता है जब हम अंग्रेजी के 2-4 वाक्य नहीं बोलेंगे, हमें कोई बौद्धिक नहीं मानेगा। ये जो आत्मदीनता है, ये जो दैन्य है, मैं आपको बताता हूं। अभी पिछले दिनों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में स्पेन की जो सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसकी मालकिन आई, गैब्रिएला कैन्यास, उसकी चेयरमैन। गैब्रिएला कैन्यास ने हमारे कक्ष के अंदर हुडा साहब, उन्होंने पूरा जो संवाद किया वो उन्होंने कक्ष के अंदर अंग्रेजी में किया। जब वो विद्यार्थियों से संवाद करने के लिए गई तो उन्होंने अपने अनुवादक को साथ रखा, और जब वो सारणिक उनका जो भाषण था वो उन्होंने स्पेनिश में दिया, एक महिला उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर रही। मैं उस दृश्य को देखकर चकित रह गया कि उन्होंने उनका जो सारणिक वक्तव्य था वो उन्होंने स्पेनिश में दिया, और उसका अनुवाद, क्योंकि हिंदुस्तान में सुविधा है कि उसको हिंदी में करने की आवश्यकता नहीं है, उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया जा रहा था। और हम कह रहे हैं कि अंग्रेज चले गए हैं और आजादी का 16 जयंती वर्ष चल रहा है। नहीं चल रहा है। हम जितने पाखंड अपने जीवन में पाल सकते हैं, उतने अधिक पाखंड को पाल करके हम विश्व भाषा दिवस मना रहे हैं। जो भाषा विश्व भाषा बन चुकी है, जिसको दुनिया के तमाम मुल्कों में बोला, बरता, समझा जाता है, उस भाषा को लेकर हिंदुस्तान के अंदर कितनी दीनता है, यह हम आज भी इस कार्यक्रम में हम देख सकते हैं। और इसलिए हिंदी हमारे सपनों की भाषा है, हिंदी हमारे अपनों की भाषा है, हिंदी हमारे दुख, दर्द, पीड़ा, आर्तनाद को व्यक्त करने वाली भाषा है। और उसे अपनी भाषा में, जैसा हुडा साहब ने कहा, कि हम अपने सपनों को, अपनी बातों को अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। जितनी सुंदर कविताएं सर ने भी सुनाई, बड़ा मंत्रमुग्ध हो गया कि कंप्यूटर साइंस का व्यक्ति
इतना सुंदर हृदय उनके पास है, इतनी सुंदर कविताएं हुडा साहब ने सुनाई, मतलब वो कविताएं मंत्रमुग्ध कर देने वाली हैं। भाषा के प्रति जो उनका अनुराग है वो यहाँ प्रकट हुआ। और मुझे लगता है कि जब हम कम्युनिकेशन की दुनिया की बात कर रहे हैं, मीडिया की दुनिया की बात कर रहे हैं, आप देखिए हिंदी और भारतीय भाषाओं की दुनिया के अंदर सकल उपस्थिति क्या है। हम 22 भारतीय भाषाएं तो संवैधानिक तौर पर बोलते हैं, जो संविधान में स्वीकृत है, लेकिन समस्त भारतीय भाषाओं को बोलने वाले, हिंदी को बोलने वाले लोगों की अगर सकल संख्या को आप जोड़ दें, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है जो हमारी भाषाओं को बोलती है। आज हिंदी के बाद बांग्ला दूसरी बड़ी भाषा है। आज जिन भाषाओं को हम छोटी छोटी भाषाएं समझते हैं, वो भाषाएं वैश्विक भाषाएं हैं। जब बंगाली हिंदुस्तान छोड़कर दुनिया किसी मुल्क में गया, वो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने थिएटर को, अपनी किताबों को, सबको लेकर के गया। आज भारत की समस्त भारतीय भाषाएं विश्व भाषाएं हैं। भारत की समस्त भारतीय भाषाएं जो हैं वो विश्व भाषाएं हैं, दुनिया भर में बोली और बढ़ती जाती है। चाहे बंगाली हो, चाहे मराठी हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, उड़िया हो, ये सब भाषाएं दुनिया भर के अंदर बोली जाती है। कि दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहां हिंदुस्तानी प्रवास नहीं करता। हिंदुस्तानी पूरी दुनिया के अंदर गए, वो अपनी भाषा को लेकर के गए, अपनी संस्कृति को लेकर गए। आज हिंदी और भारतीय भाषाओं को लेकर के पूरे देश में बहुत गहरा सम्मान है, बहुत गहरा सम्मान। हिंदी का अगर कहीं थोड़ा बहुत तिरस्कार है, वो हिंदुस्तान के अंदर हो सकता है, दुनिया के और किसी देश में नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए। और ये भी मैं कहता हूं भारावत साहब बड़ी जिम्मेदारी से, कि हिंदी का जो तिरस्कार है वो सिर्फ हिंदी भाषी इलाकों में है, दक्षिण भारतीय राज्यों में नहीं है। आपको गलत सूचना है। मैं अभी बेंगलुरु के एक कॉलेज में गया, जिस कॉलेज से पढ़ करके आपकी दीपिका पादुकोण से लेकर के ये क्या अनुष्का शर्मा सब उस कॉलेज से निकली, उस कॉलेज में गया, क्रिश्चियन कॉलेज। मैंने वहां बच्चों से पूछा कितने बच्चों ने कन्नड़ ले रखी है। 500 कुछ बच्चों ने कन्नड़ ले रखी थी, 2500 से अधिक बच्चों ने हिंदी ले रखी। उनको हिंदी बोलने में हिचक नहीं है, वो हिंदी सीखना चाहते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी सीखने की कक्षाएं चल रही है, ट्यूशन चल रही है, हिंदी सीखने की ट्यूशन चल रही है। लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी में बात करना चाहते हैं, हिंदी में आगे बढ़ना चाहते हैं और हिंदी में सूचनाएं प्राप्त करते। हिंदी एक ताकत की भाषा बन चुकी है। हमारे आप जो हिंदी भाषी हैं उनके लिए हिंदी जरूर दारिद्र्य, मानसिक दारिद्र्य की भाषा होगी, पर दुनिया के सब देशों के लिए, भारत के जो दक्षिण भारतीय राज्य जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उनके लिए हिंदी एक ताकत की भाषा है। हिंदी बोल करके आप एक ताकत का एहसास करते हैं, हिंदी आप में एक ताकत भरती है और हिंदुस्तान भर में प्रवास की आपको आजादी देती है। मैं बड़ी से बड़ी कारपोरेट कंपनी से कहना चाहता हूँ कि आप जब भारत में जब व्यापार करना होता है तो आप हिंदी विज्ञापन बनाते हैं, तमिल बनाते हैं, तेलुगु बनाते हैं, छत्तीसगढ़ी बनाते हैं, और अपना कामकाज आप कैसे चलाते हैं। ये बहुत बड़ा एक तरह से वो चल रहा है। मानव जी कहीं से डिस्टर्बेंस आ रहा है। चलिए, तो क्योंकि हमारी बातचीत कम्युनिकेशन पर केंद्रित है, कम्युनिकेशन की दुनिया पर केंद्रित है, तो हमें मानना पड़ेगा कि हम प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी भाषा है, हम एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी भाषा है, हम फिल्मों की सबसे बड़ी भाषा है, और हम संवाद की सबसे बड़ी भाषा है, इवन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की हम सबसे बड़ी भाषा है। तो मुझे लगता है कि हिंदी को लेकर दैन्य का शिकार होने की आवश्यकता नहीं है। आप आंकड़ों पे जाइए, आप देखिए हिंदुस्तान के 10 बड़े अखबार कौन सी भाषा में छपते हैं और उन्हें कौन पढ़ रहा है, उनका सर्कुलेशन फिगर क्या है। इसलिए बहुत घबराने की, बहुत दुखी होने की, बहुत संतप्त होने की आवश्यकता नहीं है। बस महात्मा गांधी के उस संकल्प से अपने आप को जोड़ने की जरूरत है, जिसमें गांधी मुल्क आजाद होने के बाद कहते हैं गांधी अंग्रेजी भूल गया है। हमें भी कहीं ना कहीं अपनी भाषा को लेकर स्वाभिमान प्राप्त करने की जरूरत है, स्वाभिमान अर्जित करने की जरूरत है। हिंदी और भारतीय भाषाओं को साथ मिलकर ये जंग जीतनी पड़ेगी। हिंदी और भारतीय भाषाएं साथ मिलकर विश्व विजय के लिए निकले। पूरा विश्व उनका स्वागत कर रहा है और अच्छी खबरों से देश भरा हुआ है। आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने की तरफ देश आगे बढ़ रहा है। और मुझे बड़ी फक्र से कहना पड़ रहा है कि आजादी के आंदोलन में जो नेता विदेशों से पढ़कर लौटे, चाहे महात्मा गांधी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, वो सारे जो हमारे सेनानी हैं वो लौट करके विदेशों से अच्छी अंग्रेजी सीख करके अच्छी अंग्रेजी बोलते हुए लौटते हैं।
और हिंदुस्तान में आकर के हिंदी और भारतीय भाषाओं के पक्ष में खड़े होते हैं। आज हमें भी अच्छी अंग्रेजी बोलते हुए, ये कहते हुए अंग्रेज के बच्चा क्या जाने अंग्रेजी जाने हम, हमें अपनी भारतीय भाषाओं में खड़े होने की जरूरत है, उनके पक्ष में खड़े होने की जरूरत है। दिमाग में जो जाला है गुलामी का, दिमाग में जो जाला है उपनिवेशवाद का, उपनिवेशवाद की लंबी छाया से मुक्त होने की जरूरत है। हम अपनी हिंदी और भारतीय भाषाओं को गर्व से बोलें और विश्व मंच पर कहीं भी गर्व से बोलें। पूरी दुनिया हमारी बात को ध्यान सुन रही है। अगर जो काम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं वो काम हम भी कर सकते हैं, जो काम महात्मा गांधी कर सकते हैं वो काम हम भी कर सकते हैं। बस उस प्रकार का स्वाभिमान, उस प्रकार का आत्मगौरव हमारे अंदर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हुड्डा साहब का, आदरणीय माननीय भानावत जी का, और सबने जिन लोगों ने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया, और हमारे मित्र तरुण शर्मा जी का बहुत धन्यवाद कि जो इतनी देर से इस समय अखबार की नौकरी कितनी कठिन होती है, मैंने अखबार की नौकरी की है और भास्कर की नौकरी भी की है, इसके बावजूद वो लगातार स्क्रीन पे बने हुए हैं। मैं उनकी व्यवस्था को समझ सकता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। जी, धन्यवाद द्विवेदी जी। बल्कि आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा। मैंने तरुण जी से शुरू में पूछा था कि आपकी व्यस्तता का मुझे पहले एहसास करा दें ताकि उसी हिसाब से हम आपको आमंत्रित करें, लेकिन मुझे लगता है ये शायद उनका भाषाई प्रेम है जो अपने उन मतलब इस वेबिनार को, इस चर्चा को उन्होंने प्राथमिकता में लिया। तो द्विवेदी जी ने बिल्कुल सही कहा कि हिंदी भाषा एक विश्व मंच पर सशक्त संवाद की भाषा के रूप में उभर रही है। चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे ब्रॉडकास्ट प्रसारण माध्यमों की भाषा है, चाहे सिनेमा की भाषा है, हिंदी का जितना व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है उतना शायद किसी अन्य भाषा का नहीं हुआ। जो आपने बेंगलोर का अनुभव सुनाया, 2-4 बार मुझे भी अपने जीवन काल में, जब मैं शांति निकेतन गया, बेंगलोर के एक निजी विश्वविद्यालय में गया और भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में गया, तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हिंदी में बात की आपने और प्रभावी ढंग से यदि आप बात करते हैं तो उसके अंत में जो अंग्रेजी के स्पीकर हैं, मैं कोई भाषाई विवाद खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तुलना कर रहा हूं, यदि आपने अपनी बात को प्रभाव, क्योंकि उनको तो बड़ा आश्चर्य होता है, वो कहते हैं ऐसी भाषा, इस प्रकार के प्रयोग हमने कभी सुने ही नहीं, तो अधिकांश लोग फोटो खिंचाने के लिए हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये ऐसी कुछ अनुभूतियां मेरी भी रही हैं। तो ये सही है कि यदि आप में कहीं उस तरह का अपनी भाषा के प्रति स्वाभिमान होगा, आप निश्चित रूप से कहीं अपनी बात को या अपनी प्रतिष्ठा को अर्जित कर सकते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूं। जापान, कोरिया, चीन जैसे देश जहां अंग्रेजी का नामो निशान नहीं है, वो देश कितनी प्रगति तकनीक के क्षेत्र में कर सकते हैं, ये कहीं सोचने की बात है। जब चीन में गया था, वहां नई पीढ़ी थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख रही है, बाकी जो वहां के प्रोफेसर्स हैं वो सब चीनी भाषा में ही बात कर रहे हैं। दो भाषा को हमको साथ लेकर के वो सारे संवाद जो है वो करने पड़े थे, और चीन हमारे यहाँ से अभी कई साल आगे है। हमारे जो मैंने वहाँ के मीडिया डिपार्टमेंट्स देखे थे, हमसे बहुत कहीं आगे है। लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों ने प्रयास किया है कि जो तकनीकी शिक्षा है वो उन्होंने हिंदी में देने की कोशिश की है। जब देश आज़ाद हुआ, एक पीढ़ी को बलिदान देना पड़ा। जब हिंदी को लागू करने के प्रयास होंगे तो कहीं ना कहीं एक पीढ़ी को बलिदान देना पड़ेगा। नानाविध प्रयोग हो रहे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ संक्रमण के काल से गुजर रहे हैं। तकनीकी शब्दावली आयोग हमारे यहाँ पे बने, उन्होंने आग्रह किया लेखकों से कि अकादमी से प्रकाशित होने वाली पुस्तक में आप भाषाई जो हमारे आयोग बने हैं, शब्दावली आयोग या जो एकेडमी है, स्टेट राज्य की जो अकादमियां हैं, वो उन शब्दों का प्रयोग करें। तो इस प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छे परिणाम आएंगे। बहुत बहुत आभार द्विवेदी जी। हमें उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलकर अपनी भाषा के प्रति गर्व करते हुए उसके अधिकाधिक प्रयोग की आवश्यकता है। बल्कि मुझे तो कई बार लगता है, हम पढ़ा मैंने इतिहास में पत्रकारिता की, महावीर प्रसाद द्विवेदी जब भी कहीं जाते थे और भाषाई या वर्तनी की अशुद्धि मिलती थी तो एक पत्र लिखते थे। शायद इस प्रकार की प्रवृत्ति हमें भी विकसित करनी होगी। जब मैं जयपुर हवाई अड्डे पे जाता हूं तो वहां लिखा रहता है जयपुर हवाई अड्डे पे आपका स्वागत है, पर और है बिंदी लगा देते हैं और पर की जगह पे लिखते हैं। अभी बैंक में गया मैं एक, तो वहां पे सतर्कता गलत लिखा हुआ है, कोई सतर्कता सप्ताह मना रहे थे, अक्टूबर की वर्तनी गलत लिखी हुई है, और जितनी मेडिकल की दुकानें हैं वहां दवाइयां लिखा रहता है, शायद ही कहीं मैंने दवाइयां में ई छोटा देखा होगा। तो ऐसी हजारों गलतियां आसपास के परिवेश में है। तो कहीं हमें उस बात से भी चिंतित होना पड़ेगा कि किस तरह की वर्तनी के प्रयोगों के प्रति हमारी असावधानी बढ़ती जा रही है। चलिए आइए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी को, जो बरसों तक
प्रदेश के जो हमारे कॉलेजेस हैं वहां पर हिंदी विभाग में अध्यापन का कार्य करते रहे। अपने करियर के अंतिम चरण में आप शिक्षा निदेशालय में संयुक्त सचिव भी रहे, प्रशासनिक दायित्व का भी आपने निर्वहन किया और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी उसी अधिकार से आप बोलते लिखते हैं। बहुत अधिक अनुवाद किया है आपने अंग्रेजी से हिंदी में। एक पत्रिका है मानुषी जो महिला मुद्दों के प्रति समर्पित थी, उसमें आपने नियमित रूप से अंग्रेजी के जो अनुवाद हैं वो लिखे हैं। मूलतः उदयपुर के रहने वाले, 1967 में आप कॉलेज शिक्षा से जुड़ते हैं। एमए और पीएचडी की उपाधि आपने उदयपुर विश्वविद्यालय से ही प्राप्त की और समसामयिक विषयों पर बहुत ही संजीदा वैचारिक टिप्पणियां आप अपने आलेखों में करते रहे हैं। देश की लगभग सभी पत्रिकाओं में आप नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों से प्रति सप्ताह जयपुर का एक दैनिक राष्ट्रदूत जो है, सबसे पुराना समाचार पत्र, उसमें आप अतिथि संपादकीय के रूप में जो समकालीन मुद्दे हैं उन पर अपनी प्रखर लेखनी भी चला रहे हैं। हमारे पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी की एक पुस्तक थी, उसका आपने हिंदी अनुवाद किया था, चेहरे और चिट्ठियां, जो काफी लोकप्रिय रहा। आकाशवाणी और दूरदर्शन, इनसे आपका नियमित जुड़ाव है। कुछ कार्यक्रमों में, चाहे आकाशवाणी दूरदर्शन, हमने साथ साथ भी सहभागिता की है। 8 बार आप विदेश यात्राएं कर चुके हैं और अपने विदेश प्रवास के दौरान आपने वहां की कला संस्कृति पर भी न सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखा है, वरन पुस्तकाकार रूप में भी आपके वो आलेख प्रकाशित हुए हैं। आपकी अमेरिका यात्रा पर जो एक पुस्तक है आंखन देखी, उसे राजस्थान साहित्य अकादमी ने कन्हैयालाल सहल पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपने इंटरनेट पर भी बहुत लिखा। इंद्रधनुष नामक एक साहित्यिक पत्रकारिता का आप लंबे समय तक संपादन करते रहे हैं। मैं यदि यूँ कहूँ कि अग्रवाल साहब के पूरे व्यक्तित्व को हम, उसमें जो आपकी दिलचस्पी या रुचि के विषय हैं, उसमें साहित्य, शिक्षा, समाज, राजनीति, पर्यावरण, फिल्म, संगीत, नृत्य, फोटोग्राफी, प्रसारण, संचार आदि न जाने कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आपकी रुचि लगातार बनी रहती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जीवन की इस उम्र में भी, क्योंकि जब भी हम इस उम्र कहते हैं तो मुझे भी कई बार बड़ी पीड़ा होती है कि इस उम्र का क्या मतलब है। लेकिन जीवन के 8वें दशक में जिस सक्रियता के साथ अग्रवाल जी लिख रहे हैं, मुझे लगता है हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। मेरा इनसे बड़ा आत्मीय रिश्ता रहा है। हमारे विभाग के अनेक आयोजनों में, चाहे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हो या अलग अलग सेमिनार्स हों, उनमें सतत आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है और हमारी वेबिनार श्रृंखला में भी समय समय पर आपका सहयोग और जुड़ाव हमें मिला है। मैं अग्रवाल साहब से अनुरोध करूंगा कि मीडिया के साथ जो आपका इतना व्यापक और लंबा अनुभव रहा है, क्योंकि आपने उस पूरे दौर को देखा है, उस बदलाव को आपने देखा है, तो क्या महसूस करते हैं आदरणीय डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी? धन्यवाद डॉक्टर संजीव भानावत जी। आपने मेरा बहुत लंबा परिचय दिया और मुझे लगता है कि मैं उसका पात्र नहीं हूँ, लेकिन ये आपकी मेरे प्रति आत्मीयता है कि आप मेरे बारे में इतनी सारी अच्छी बातें कह रहे हैं। आज के दिन पहले मैंने प्रोफेसर हुडा साहब को सुना और बाद में संजय द्विवेदी जी को सुना। दोनों ने अपनी भाषा के प्रति अनुराग की जितनी भावपूर्ण अभिव्यक्ति की, उसने हम सब में एक नई चेतना का, नए उत्साह का संचार कर दिया है। ऐसे भावपूर्ण वक्तव्यों को सुनने के बाद मुझे अपनी बात को शुरू करने में थोड़ा सा श्रम करना पड़ रहा है, लेकिन बात तो करनी ही है। मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ बहुत सारे युवा साथी भी जुड़े हुए हैं, तो मैं 2 छोटी बातों से अपनी बात को शुरू करना चाह रहा हूं। खासतौर से ये बात विद्यार्थियों के लिए है। भारत में हम लोग 14 सितंबर को एक हिंदी दिवस मनाते हैं और हम में से अधिकांश लोग उसी को हिंदी दिवस के रूप में जानते हैं। 14 सितंबर का जो हमारा हिंदी दिवस है, वो इस बात की स्मृति में है कि उस दिन सन 1949 में भारत की संविधान सभा ने इस देश की राजभाषा के रूप में हिंदी को अंगीकार किया था और 26 जनवरी 1950 से जो संविधान हमने आत्मार्पित किया, उस संविधान में
हिंदी इस देश की राजभाषा बनी। तो असल में वो जो 14 सितंबर वाला दिन है, वो हमारी राजभाषा को मनाने का दिन है। और जैसा आज के दिन के लिए मेरे पुराने मित्र संजीव भानवत जी ने बताया कि 10 से 14 जनवरी 1975 तक नागपुर में जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, और अब तक जिस श्रृंखला में 12 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, उनको हमारी स्मृति में अंकित करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 10 जनवरी 2006 को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई। जब हम हिंदी की बात करते हैं, तो क्योंकि हम में से अधिकांश लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, हमारा भावुक हो जाना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि उस भावुकता को छोड़कर थोड़ी सी तथ्यपरकता की बात भी कर लेनी चाहिए। वो तथ्यपरकता की बात में विशेष रूप से, आप तो बड़े विद्वान हैं, सभी मुझसे बड़े विद्वान हैं, मैं केवल विद्यार्थियों के लिए बात करना चाह रहा हूं कि देखिए, भाषा के कई रूप होते हैं। हम लोग बहुत बार उत्साह में कहते हैं कि हिंदी हम सबकी मातृभाषा है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम में से अनेक की मातृभाषा गुजराती होगी, बांग्ला होगी, मराठी होगी, और जिस तरह से भारत में रहकर हम हिंदी से अपना अनुराग व्यक्त करते हैं, उसी तरह इंग्लैंड वाले अंग्रेजी से अपना अनुराग रखते हैं, फ्रांस वाले फ्रेंच से रखते हैं, जर्मनी वाले जर्मन से रखते हैं, और दुनिया के अन्य अन्य देशों के लोग अपनी अपनी भाषाओं से अनुराग रखते हैं। इनमें कहीं कोई प्रतिस्पर्धा की, कोई तुलना की, कोई लड़ाई की बात नहीं है। लेकिन जब हम भारत के राजकार्य की बात करते हैं, तो राजभाषा के रूप में हम हिंदी की स्वीकार्यता की बात करते हैं। और ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन हम लोगों ने मनाने का सिलसिला शुरू किया था, उसके मूल में एक ही बात थी कि सारी दुनिया में हिंदी की स्वीकार्यता बढ़े, उसका उपयोग बढ़े, और हम लोग देख रहे हैं कि उस सिलसिले के बहुत सारे सुपरिणाम हमारे सामने हैं। हम उस विस्तार में नहीं जाएं, और मैं सीधे उस मुद्दे पर आऊं जो आज की चर्चा के लिए निर्धारित किया गया है, और मैं आपसे केवल इस विषय पर बात करूं कि मीडिया में, संचार माध्यमों में हिंदी की क्या स्थितियां हैं, उसकी क्या चुनौतियां हैं, और उसके विकास की क्या संभावनाएं हैं, तो मुझे ये अधिक उपयुक्त लगेगा। हिंदी के प्रति हमारा अनुराग अपनी जगह, लेकिन मीडिया में, और विशेष रूप से भारत के मीडिया में हिंदी की क्या स्थिति है, मैं इस पर अपनी बात को केंद्रित रखना चाहूंगा। संजीव जी ने अभी इस बात का जिक्र किया कि हम लोगों का जो प्रारंभिक काल था, बचपन और किशोरावस्था, उसमें हम लोग आकाशवाणी पर जब हिंदी में समाचार सुनते थे, या अखबारों में हम हिंदी में खबरें पढ़ते थे, तो हमें सलाह दी जाती थी कि अगर तुम्हें अपना उच्चारण सुधारना है, तो तुम आकाशवाणी की उद्घोषणाओं को सुनो। मुझे बीबीसी की हिंदी भी सुनने की सलाह की स्मृतियां हैं, और अच्छी हिंदी आप कैसे बनाएं अपनी, उसके लिए हिंदी अखबारों की तरफ देखने की बात कही जाती थी। लेकिन हिंदी के एक विद्यार्थी के रूप में मैं इस बात को भी याद करता हूं कि एक समय वह था जब लोगों ने, जिन्हें हिंदी नहीं आती थी, चंद्रकांता और भूतनाथ जैसे उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी। ये इतिहास बार बार दोहराया जाता रहा है। अगर आपको याद हो, भारत में जब टेलीविजन शुरू हुआ, तो दो बड़े धारावाहिक, दो बड़े कार्यक्रम हमारे यहाँ आए थे। पहले आया था बुनियाद, और उसके बाद आया था हम लोग। और मुझे अच्छी तरह से वो जमाना याद है जब इनका आनंद लेने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी थी। और इसके बाद दो जो बड़े धार्मिक धारावाहिक हमारे यहाँ आए, उनकी लोकप्रियता तो आप जानते हैं, रामायण और महाभारत। जो लोग हिंदी नहीं जानते थे, उन्होंने भी इन कार्यक्रमों को रुचि से देखा, और न केवल देखा, इनके कारण अपनी हिंदी को मांझा और तराशा, और पिताश्री और माताश्री जैसी अभिव्यक्तियां पूरे देश में लोकप्रिय हुई।
ये बात करते हुए मुझे एक मजाक वाली बात भी याद आती है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में प्रधानमंत्री थी, तो प्रायः मजाक में और कभी-कभी थोड़े से व्यंग में भी एक बात कही जाती थी कि भारतीय टेलीविजन पर केवल 2 ही महिलाओं का कब्जा है, एक श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरी लता मंगेशकर। और मजे की बात ये है कि ये जो कब्जा था, इन दोनों का कब्जा वो इनकी भाषा की वजह से भी था। लता मंगेशकर के हिंदी गाने पूरे देश में जाने सुने सराहे जाते हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी देश से जब भी मुखातिब होती थी, देश में खासतौर से, तो वो हिंदी में ही होती थी। तो ये जो हमारे संचार माध्यमों का शुरुआती समय है, एक तरह से संचार की विकास यात्रा का और यूं कहें संचार के विस्फोट का, उसमें संचार माध्यमों में हिंदी का बहुत सारा चलन था। लेकिन ये जिस काल की मैं बात कर रहा हूं, वो काल एकल दूरदर्शन चैनल वाला काल था। और आज हम एक लंबी छलांग लगाकर ऐसे समय में आ गए हैं जब पता नहीं कितने, शायद 1000 के आसपास चैनल, निजी चैनल्स हमारे पास उपलब्ध हैं। और अब उससे भी आगे ओटीटी वाला समय आ गया है। इतने सारे चैनल्स हमारे पास चारों तरफ से सुलभ हैं। शुरू में हम लोगों को लगता था कि इन सब पर तो, केवल दूरदर्शन को आप छोड़ दीजिए, इन पर तो अंग्रेजी का वर्चस्व है और बड़े चैनल्स आप भी याद करेंगे अंग्रेजी में ही थे, दूसरी भाषाओं में थे। हम लोग अंग्रेजी की बात इसलिए करते हैं कि दुनिया की दूसरी भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी से हमारा परिचय अधिक है। अब आप याद कीजिए कि एक बहुत बड़ा चैनल नेटवर्क स्टार, वो भारत में आता है और भारत में आकर वो हिंदी में अवतरित होता है। स्टार का हिंदी में अवतरित होना मुझे संचार माध्यमों में हिंदी की स्वीकार्यता की एक बहुत बड़ी घटना के रूप में याद आता है। और जब स्टार हिंदी में आया तो उसके पीछे पीछे आप याद कीजिए, नेशनल ज्योग्राफिक भी आ गया, डिस्कवरी भी आ गया, एपिक भी आ गया। इन सब लोगों ने अपने कार्यक्रम हिंदी में देना शुरू किए और आज स्थिति मुझे ये लगती है कि आप चाहे टीवी के ये निजी चैनल्स देखें या ओटीटी पर देखें, लगभग सारा कंटेंट आपको हिंदी में उपलब्ध है। आप देखेंगे नेटफ्लिक्स जैसा एक बड़ा ओटीटी, उस पर कितना सारा कंटेंट दुनिया भर का है और वो हमें हिंदी में उपलब्ध है। तो ये हिंदी की एक विकास यात्रा का बड़ा पड़ाव मुझे लगता है कि हमें मनोरंजन की दुनिया में सब कुछ, अधिकांश सब कुछ हिंदी में उपलब्ध हो रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है। और इसके पीछे केवल भाषा के प्रति उनका अनुराग हो ऐसा नहीं है, इसके पीछे व्यावसायिक कारण भी हैं। अभी किसी मित्र ने विज्ञापनों की दुनिया का उल्लेख किया था। अगर कोका कोला को ठंडा मतलब कोका कोला कहकर बेचा जा रहा है, तो ये हिंदी के प्रति उनका अनुराग पता नहीं है या नहीं है, लेकिन एक बड़े समुदाय तक उनकी पहुंचने की आकांक्षा का परिचय है। और इसी तरह मीडिया तो क्योंकि जनता से जुड़े बिना तो रह नहीं सकता, तो वो उस भाषा में अपनी बात कहने का प्रयास करता है जिसे अधिसंख्य लोग समझते हैं। और जैसा अभी यहाँ कहा गया कि लगभग 40% आबादी इस देश की, जो कि बहुत बड़ी आबादी होती है, वो अगर हिंदी बोलती समझती है तो मीडिया को हिंदी में आना ही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो बहुत उत्साह से, बहुत सलीके से, बहुत कौशल से आ रहा है। और जो काम इन दृश्य माध्यमों में हुआ है, वही बात शब्दों की दुनिया में भी हुई है। बहुत बड़ी-बड़ी पत्रिकाएं, अब आप याद कीजिए इंडिया टुडे हमारे यहाँ शुरू में अंग्रेजी में आई है, लेकिन बाद में इंडिया टुडे का हिंदी अवतार भी आ गया। आउटलुक एक बड़ी अंग्रेजी पत्रिका, बाद में वो भी हिंदी में आने लगी है। मैं इस बात पर बहुत खुशी जाहिर करने की जरूरत नहीं समझता हूँ कि राजस्थान पत्रिका या भास्कर या नवभारत टाइम्स या हिंदुस्तान हिंदी में निकल रहे हैं, वो तो निकल ही रहे हैं। लेकिन जिनकी भाषा हिंदी नहीं थी, वे भी अगर हिंदी में आ रहे हैं, तो ये मुझे एक बड़ी परिघटना लगती है और इस बात पर मुझे खुशी भी होती है, इस बात पर मुझे गर्व भी होता है। इधर आप देख रहे हैं, दुनिया की जितनी भाषाओं की फिल्में, खासतौर से हॉलीवुड की फिल्में, अगर वो अपनी भाषा में रिलीज होती है, तो लगभग उसी के साथ वो हिंदी डबिंग के साथ हमारे छवि गृहों में भी आ जाती है। अगर कोई बड़ी किताब
अंग्रेजी में आती है तो लगभग उसके साथ ही या थोड़ा सा पीछे वो हिंदी अनुवाद के रूप में हमारे पास आती है। तो ये जो बड़ा काम हो रहा है, युval नोआ हरारी की सेपियंस और होमो डेयस हिंदी में हमें उपलब्ध है, स्टीफन हॉकिंग हमको हिंदी में उपलब्ध है। तो ये जो इन सारे लोगों का हिंदी में उपलब्ध होना है, ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि मुझे लगती है। अगर आप मनोरंजन की दुनिया की बात करें, तो देखिए कितनी सारी फ़िल्में, हमारा जो ज़माना था, जब मुग़ल-ए-आज़म के डायलॉग्स की एलपी बाज़ार में आई थी, या उसके बाद जब शोले के डायलॉग्स की एलपी आई थी, तो सारा देश उन डायलॉग्स को दोहरा रहा था। तो ये हिंदी फ़िल्मों ने हिंदी के विकास में, हिंदी को देश भर में फैलाने में जो बड़ी भूमिका अदा की है, और न केवल देश में, बल्कि सारी दुनिया में उन्होंने हिंदी को फैलाया है। उस ज़माने को याद कीजिए जब राज कपूर हुआ करते थे और उनका मेरा नाम मेरा जूता है जापानी रूस में कितना लोकप्रिय हुआ था, और आज शाहरुख खान को जिस तरह से दुनिया भर में, न केवल हिंदी भाषी, बल्कि जिनको हिंदी नहीं आती है, जो भारत के नहीं है, वे लोग भी उनकी फ़िल्मों को रुचि से देखते हैं और उनके डायलॉग्स को दोहराते हैं। तो ये हिंदी का प्रसार हो रहा है, और इसमें जो मीडिया की भूमिका है, उसकी मैं सराहना करना चाहता हूँ। एक ज़माना था जब फ़िल्मों में ये कहा जाता था कि जो हमारे बड़े कलाकार हैं, उनको संवाद तो रोमन में लिख कर दिए जाते हैं और वे हिंदी में उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज कलाकारों की एक बड़ी पीढ़ी ऐसी आई है, जो हिंदी में निष्णात है, जो बहुत अच्छी हिंदी बोलती है। आप अमिताभ बच्चन की बात मत कीजिए। हालाँकि अमिताभ बच्चन जिस तरह से हिंदी को बरतते हैं, उससे हम सबको गर्व होता है और हिंदी की ताकत दुनिया के सामने उजागर होती है। लेकिन नई पीढ़ी के जो लोग हमारे सामने आए हैं, चाहे वो मनोज वाजपेयी हों या पंकज त्रिपाठी हों या स्वरा भास्कर हों या आशुतोष राणा हों, ये लोग हिंदी की जो एक नई महक हमारे सामने लेकर आए हैं, और इन्होंने हिंदी की स्वीकार्यता को जिस तरह से बढ़ाया है, उसको कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अभी सोशल मीडिया की बात की, ये समय सोशल मीडिया का है, हम केवल इस औपचारिक मीडिया की बात ही ना करें। सोशल मीडिया के जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आज उन सबको हिंदी में बरता जा सकता है और बरता जा रहा है। वो चाहे फ़ेसबुक हो या पुराना ट्विटर और जिसका नया नाम एक्स हो गया है वो हो, या थ्रेड्स हो, जो भी नए माध्यम है, यहाँ तक कि और भी दूसरे माध्यम, चाहे इंस्टाग्राम वगैरह, वहाँ भी थोड़ी-थोड़ी हिंदी आने लगी है। हालाँकि वो तस्वीरों का माध्यम ज़्यादा है, तो वहाँ भाषा की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सारे माध्यम आज हिंदी को अपने यहाँ प्रयुक्त होने की अनुमति दे रहे हैं और हिंदी को धड़ल्ले से काम में लिया जा रहा है। इसमें मुझे 2 चीज़ों की बड़ी भूमिका लगती है। एक तकनीक की भूमिका लगती है। जब कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में आया, इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में आया, तो शुरू में एक धारणा थी कि अंग्रेजी के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं सकता है। लेकिन उसके पीछे बड़े कारण तो व्यावसायिक थे और दूसरे कारण भी थे। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने जिस तरह से हिंदी के सॉफ्टवेयर को लोकप्रिय बनाने में अपना उत्साह दिखाया, और हमारे अपने सरकारी संस्थानों ने भी, सीडैक जैसे संस्थानों ने जिस तरह हिंदी में काम करना आसान किया, आज आप देखते हैं कि आपके हाथ में जो मोबाइल है, एक बहुत कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी मोबाइल को हिंदी में काम में ले लेता है, वो उस पर लिख देता है। और अब तो जैसे-जैसे तकनीक का विकास होता जा रहा है, आपके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइप करना आए। आज वॉइस टाइपिंग इतनी आम हो गई है। इन सब के कारण भी ये संभव हो गया है कि लोग संचार माध्यमों पर और विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर हिंदी का उत्साह के साथ प्रयोग करें। दोस्तों, ये जो सन 2024 का हमारा विश्व हिंदी दिवस है, इसके लिए भारत सरकार ने जो थीम रखा है, वो रखा है हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। हल्की सी चर्चा मैं इस बात की भी करना चाहूंगा। सोशल मीडिया के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे आज के समय का यथार्थ है, और मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भी हिंदी ने अपने हाथ-पाँव खूब फैलाए हैं, और आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रारंभिक प्रयोग करने के लिए आप हिंदी का बहुत आसानी से उपयोग कर पा रहे हैं।
आप चाहे अलेक्सा जैसी चीजें हो जो आपके घर में काम में आती हैं, या आप अगर गूगल से कोई सवाल करते हैं तो वहां आपको आपकी हिंदी समझी जाती है और आपको हिंदी में जवाब दिया जाता है। अगर आप एक कैब में यात्रा कर रहे हैं, उबर या ओला में, तो आप वहां गूगल मैप का प्रयोग होते हुए देखते हैं और गूगल मैप किस तरह से हिंदी में सारे रास्ते बता देता है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र है, वहां भी हिंदी बहुत तेजी से पांव फैला रही है। ये बात बहुत सुखद है। तो जिस तरह से हिंदी का प्रसार हो रहा है, वो मुझे बहुत उत्साहजनक लगता है। और यहाँ मीडिया में कोई वो उस तरह की लड़ाई-वड़ाई की बात भी नहीं है कि हिंदी हो ना हो। सीधी-सी बात है, ये सारी व्यावसायिक दुनिया है और अगर उन लोगों को लगता है कि हिंदी की उपभोक्ता ज़्यादा है, तो वो हिंदी में अपना काम करेंगे। लेकिन अभी संजीव जी ने जिस चिंताजनक बात की तरफ इशारा किया, वो उस चिंता का हल्का-सा उल्लेख मैं भी करना चाहूँगा। वो उल्लेख इस रूप में करना चाहूँगा कि भाषा के साथ हमारा जो व्यवहार है वो जिम्मेदारी से हटकर गैर जिम्मेदारी की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक समय था, जैसा इन्होंने भी उल्लेख किया और हम लोग बार-बार उल्लेख करते हैं, कि अखबारों और संचार माध्यमों से हम हिंदी लिखना और बोलना सीखते थे। लेकिन आज वो स्थितियां बहुत कम होती जा रही हैं। बड़े समाचार पत्रों में भी भाषा के असावधान प्रयोग बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि वो ठीक भाषा लिखें। खासतौर से जो एफएम वाली पीढ़ी आई है, वो एकदम बोलचाल की भाषा को, यूं कहें कि सड़क और गलियों की भाषा को केंद्र में ले आई है। वो कोई बहुत सुखद नहीं लगता है। और ओटीटी पर आने वाले बहुत सारे कंटेंट को देखें तो वहां तो मुझे लगता है कि गालियां देना और खराब भाषा का प्रयोग करना ही शायद उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण हो गया है। ये मुझे बहुत दुखद लगता है। भाषा के एक विद्यार्थी के रूप में मैं इस बात को जानता हूं कि हमेशा दो तरह की भाषा होती है। एक बोलचाल की भाषा होती है, एक सभा सम्मेलन की भाषा होती है, एक औपचारिक भाषा होती है। तो निश्चित रूप से जब मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ, तो वो भाषा अलग होगी, लेकिन जब मैं मंच पर बोलूँगा तो वो भाषा अलग होगी। लेकिन आज इन दोनों के बीच की सीमा रेखा बहुत धूमिल होती जा रही है। अभी ये बहुत सही कहा गया कि हम में से कितने लोग हैं जो शब्दकोश लिखते हैं। लेकिन अगर मीडिया हाउसेस भी शब्दकोश की उपेक्षा करने लगें, तो वो चिंता की बात होती है। तो ये थोड़ा-सा हो रहा है, ये बड़ी चुनौती है। और एक और चुनौती, क्योंकि मेरा संबंध शिक्षा से रहा है और हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे अधिकांश शिक्षण संस्थानों ने अपने पाठ्यक्रम को समय की मांग के अनुरूप नहीं बदला है। हम लोग हिंदी के नाम पर केवल साहित्य पढ़ाते हैं, जबकि उसकी आज उतनी उपादेयता इन माध्यमों के मामले में नहीं रह गई है। साहित्य के बिना काम नहीं चल सकता। साहित्य आपकी भाषा को, आपकी चिंतन प्रक्रिया को संस्कारित करता है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। इससे कोई मना भी नहीं करेगा। बिना साहित्य के आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि किसी की भाषा समृद्ध होगी। लेकिन आप केवल साहित्य पढ़ाकर किसी पीढ़ी को, किसी युवक को नए रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करें, इस बात में मुझे संदेह है। हमारे शिक्षण संस्थाओं को इस बारे में सोचना चाहिए। आज रोजगार के इतने अवसर हैं मीडिया में, हिंदी के क्षेत्र में, लेकिन हम अपने युवाओं को उन अवसरों के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। ये मेरी चिंता है। ये मुझे आज के समय की बहुत बड़ी चुनौती लग रही है। मुझे लगता है जितना समय मुझे दिया गया था उतना समय मैंने ले लिया है। करने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं यहीं अपनी बात को विराम देता हुआ आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। आपने हिंदी में निहित अपार संभावनाएं और उसकी स्वीकार्यता को अनेक उदाहरणों से हमारे सामने स्पष्ट किया है। आपने जिन टीवी चैनल्स और बड़े मीडिया संस्थानों की पत्रिकाओं का जिक्र किया कि वो हिंदी में आ गए हैं, मुझे लगता है वो जो व्यावसायिकता की ओर आपने संकेत किया था, वो कारण शायद अधिक है, क्योंकि केवल हिंदी ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं में भी ये चैनल्स और पत्रिकाएं, इंडिया टुडे केवल हिंदी और अंग्रेजी में नहीं है, दूसरी भाषाओं में भी प्रकाशित होने लग गई है। स्टार और जो दूसरे चैनल्स की आपने बात की, वो हिंदी के अलावा अनेक भारतीय भाषाओं में भी अब उपलब्ध हैं।
लेकिन फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन माध्यमों ने हिंदी को जन जन की भाषा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सेवा की है। और ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स वहाँ भी इसकी अपार क्षमताएं जो हैं वो हमने देखी हैं। और वो जो आपने चिंता प्रकट की कि सड़क और गली की भाषा केंद्र में आ गई है, और असली चिंता मुझे भी वही होती है। और शायद उसी को ध्यान में रखते हुए आज के उस विषय को मैंने विचार किया था। और जो आपने बात कही कि जो हमारी मुख्य थीम थी, ये मैंने एक्चुअली कल ही पढ़ा, लेकिन मुझे विषय बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले किसी और समय में अपन इस विषय पर और विस्तार से बात करेंगे कि ये जो नई तकनीक है उसमें हिंदी में कितनी संभावनाएं हैं। संयोग से आप चैट जीपीटी और अलेक्सा और ये सारे जो नए प्रयोग हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत अनुभव मैंने भी किया है। तो अपन कोशिश करेंगे कि नई पीढ़ी को इस क्षेत्र में कहीं और जानकारी इसके माध्यम से दे सकें कि ये जो प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए अब अपन आमंत्रित करते हैं उन मीडिया कर्मी को। देखिए, भास्कर ने हमारे यहाँ बहुत नए नए प्रयोग किए हैं, और पिछले कुछ समय से भास्कर ने जो शीर्षकों की रचना में वह प्रयोग किए हैं, अग्रवाल साहब शायद मुझसे सहमत हों कि जिस तरह के शीर्षक लगाए हैं उसमें जो रचनात्मकता और वो देखने को मिलती है, वास्तव में उससे अखबार की जो एक प्रतिष्ठा है या जो लोकप्रियता है, पाठकों में जो उसकी पठनीयता है, उसमें निश्चित रूप से और अधिक आकर्षण जो है पैदा हुआ है। मैं तो इन दिनों पिछले करीब कुछ महीने से बॉम्बे में ही हूँ, और अभी भी आपका जो डिजिटल एडिशन है उसको सब्सक्राइब कर रखा है। और प्रतिदिन भास्कर को बिना पढ़े दिन की शुरुआत नहीं होती है। और विशेषकर जो मुख्य खबरें हैं उनके शीर्षक में जो आप प्रयोग करते, इतना समय नहीं है कि मैं उन सब की बात करूं। तो निश्चित रूप से स्थानीय संपादक के रूप में तरुण जी की अपनी एक महती भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों से आप दैनिक भास्कर से जुड़े हुए हैं, और जो हमारा यहाँ यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है वहाँ भी आपने विद्यार्थियों को दिशा निर्देश दिया है। और भास्कर के साथ कई बार आपकी जो टिप्पणियां हैं प्रदेश की और शहर की उन चिंताओं को लेकर के, बड़ी प्रखरता से आपकी वो संपादकीय टिप्पणियां भी हमें पढ़ने को मिलती रहती हैं। जिस तरह के आपके भाषाई प्रयोग हैं, भाषाई कौशल है, वो हमें अभिभूत करता है। तो इस विषय को प्लान करते समय मुझे लगा कि क्यों नहीं तरुण जी को हम आमंत्रित करें और उनके अनुभव भास्कर के साथ काम करने में, शब्दों के प्रयोगों को लेकर के, क्योंकि पूरी एक संपादकीय टीम का आप नेतृत्व कर रहे हैं, और एक शिक्षक के रूप में, भाषा के विद्यार्थी के रूप में जो चिंताएं आज प्रकट की गई, तो एक अखबार में काम करते हुए आपको क्या वो चुनौतियां लगती हैं, या किस तरह से आप उन सारी चीजों को उस अखबार के अंदर बैठ करके आप देखते हैं। क्योंकि सप्लीमेंट्स जिसमें जो प्रयोग होते हैं और जो मुख्य अखबार है उनके प्रयोगों में भी बहुत विविधता है, और वो जो अलग अलग उसकी एक दृष्टि है। तो हम चाहेंगे कि अपनी कुछ उस दृष्टि को और उन प्रयोगों के बारे में आप हमें भी कहीं ना कहीं कुछ दिशा बोध दें। भाई तरुण शर्मा जी। नमस्कार, धन्यवाद और आभार मुझे इनवाइट किया आप लोगों ने। एक्चुअली क्या मैं सबसे जूनियर हूँ और सबसे कम अनुभव वाला व्यक्ति हूँ आप सब में। तो कोई गलती हो तो एक्चुअली हम लोग क्या लिखने वाले आदमी हैं, बोलने का ज़्यादा हमें अनुभव नहीं है। लेकिन चूंकि आज हिंदी की बात हो रही है और हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस, तो बोलना ज़रूरी है, लाजमी है। एक्चुअली आज का सब्जेक्ट जो है मैं सीधा उसी पे आता हूँ। इतिहास की बातें काफ़ी होगी कि चुनौतियाँ यानी वर्तमान और संभावनाएं यानी भविष्य है, क्या-क्या है। तो हम उस पे ही बात करते हैं। अमूमन क्या है कि अब भाषा की बात चली थी कि सामान्य बोलचाल की भाषा या लिखने की भाषा, पढ़ने की भाषा। तो मैं पत्रकारिता के जितने भी हमारे दिग्गज या स्टूडेंट्स जो हैं, अभी पढ़ना बहुत कम हो गया है। जो सबसे बड़ी चुनौती जो आ रही है कि पढ़ना बहुत कम हो गया है। इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है बेसिकली कि आदमी पढ़ता नहीं है तो सही शब्द ज्ञान नहीं होता है और वो ठीक से लिख भी नहीं पाता है। अब नई पोत जो आ रही है पत्रकारों की, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं जब भी किसी फेलो से या इंटर्नशिप के लिए कोई आता है, तो उससे मैं एक पैराग्राफ ज़रूर लिखवा के देखता हूँ, उसके बारे में, उसके आस-पास की चीज़ों के बारे में। तो विडंबना है कि मतलब मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जो गलतियाँ हैं अखबार में, भाषाई त्रुटियाँ हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन और तमाम तरह की, वो बहुत ही मतलब चिंताजनक है। और सबसे विडंबना जो मेरे को लगता है कि लास्ट मैंने हिंदी पर बात की थी 14 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान में, और आज मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम हिंदी को आचरण में नहीं ला पाते हैं। हम बातों में ही लाते हैं। हम जो इंट्रोडक्शन देते हैं हमारी,
अपने बारे में बताते हैं, तो वो भी हम मतलब अंग्रेजी भाषा में ही करते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है और मैं चाहूँगा कि हिंदी में हिंदी दिवस पे बोलना ना, ये सबसे बड़ा मेरे लिए दुखद पहलू रहता है, मतलब मेरे स्तर। इससे आगे बढ़ते हैं कि बोलचाल की भाषा, क्योंकि हम लोग तो पिछले दिनों में जर्नलिज्म में काफ़ी एक चेंज आया है कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, संप्रेषण जो विधा है, उसको हमें डेवलप करना है और आम बोलचाल की भाषा जो आदमी समझ सके, उसको हम लेकर के आएँ। आपने भी कहा कि 1960 में आई थिंक 21 दिसंबर 1960 में केंद्रीय शब्दावली आयोग बनाया गया था। वो इसीलिए था कि तमाम तरह की भाषाओं के जो अनुवाद करके और उसका हिंदीकरण करके हम उसको समावेश करें, क्योंकि हम समावेशी है हिंदी भाषा। तो वो उन्हीं चीज़ों के आपसे एक छोटा-सा सवाल है कि मैं टॉकेटिव बनाना चाह रहा हूँ इस सेशन को थोड़ा, कि प्रधानमंत्री रोज़गार गारंटी योजना, इसमें गारंटी शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो ये ज़्यादातर लोग नहीं बता पाएँगे। अब दिक्कत क्या आ रही है कि वो तो हिंदी में भी चल रहा है, अखबारों में भी चल रहा है। उसमें क्या दिक्कत है कि आप एक नोट उठाएँगे तो उसपे लिखा होता है कि गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। गारंटेड वर्ड का मतलब गारंटी का मतलब है प्रत्याभूति, वारंटी का मतलब है अद्याभूति। तो अगर अखबार में हम लिख दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट कर्मी जो हैं, ठेका कर्मी हैं, संविदा कर्मियों को प्रत्याभूति दी है कि हम आपको प्रत्याभूति दी है कि हम आपको रोज़गार देंगे। तो ये कोई समझ भी नहीं पाएगा। तो बोलचाल की भाषा हम जो बोल रहे हैं वो भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ, हम संपादकीय की बात करें या टिप्पणियों की बात करें, तो उसमें हम इस्तेमाल करते भी हैं ये। लेकिन यहाँ जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितने भी संस्थान हैं, शैक्षणिक जो संस्थान हैं, पत्रकारिता के जो हमारे संस्थान हैं, यहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अभी जो पॉडकास्ट पे शिफ्ट हो गया आदमी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादातर सुनने में यकीन रखते हैं, वो पढ़ने का उनका काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। एक पॉइंट ये था और कुछ एक किस्से हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक बच्चा है, उसका मैंने एक बार वो देखा, नोटबुक देखी। एक 6th क्लास का बच्चा था, जिसने पूरी की पूरी नोटबुक में उसके एक पेज के अंदर 52 मिस्टेक्स थी हिंदी के अंदर। तो मैंने उनकी मदर को बोला, मैंने कहा कि ये तो भाभी जी बहुत दिक्कत वाली बात है। बोले नहीं, वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है ना, कॉन्वेंट में पढ़ता है। तो हिंदी की ऐसी उपेक्षा जिसे हम ये गौरव के साथ कह रही हैं एक मदर कि हम जो है कॉन्वेंट एजुकेटेड है लड़का, तो मैं हिंदी को खारिज कर रही हूँ। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी परेशानी है। बाकी काफ़ी चीज़ें जो हुई हैं वो शेयर हो चुकी हैं। तो हिंदी के बारे में मीडिया के अंदर जो हिंदी हिंदी आ रही है, हिंदी के जो हम बात कर रहे हैं, खैर नमस्कार, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अरे तरुण जी, जी, बहुत जी। बहुत आभार, आपने संक्षेप में ये कुछ मुद्दे सवाल हो उठाए। क्योंकि एक्चुअली क्या वन वे हो रहा है, हाँ, मैं नहीं, बोल नहीं, ही जा रहा हूँ, मैं थोड़ा आपकी टॉकेटिव बात नहीं से हूँ। काफ़ी हद जी, तक जी, जी। सहमत हूँ। ये सारी आपने शब्दावली आयोग की बात की। जी, जी। संयोग से जो पत्रकारिता का पारिभाषिक कोष तैयार किया गया, उस कमेटी में मैं भी था और जी, 2-3 जी। मीटिंग्स, 4 मीटिंग मैंने भी अटेंड की है। हुँ, उसमें हुँ। क्या था कि जिस तरह के अनुवाद के, जैसे आपने प्रत्यानुभूति और इसकी बात की, वो जो हुँ, अनुवाद हुँ। हुए हैं पत्रकारिता के, वो भी इसी तरह के हुए हैं कि वो हुँ, प्रचलन में हुँ, नहीं आ सकते। अब हमारी पुस्तकें अकादमी से छपी हैं। हुँ, अकादमी हुँ। ने हमके कहा कि साहब, सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है कि आपको उन्हीं शब्दावली का प्रयोग करना पड़ेगा जो शब्दावली आयोग ने निर्धारित की है। निश्चित मानिए, उस शब्दावली आयोग के प्रयोगों को उपयोग में लाके परीक्षा पास करने वाला विद्यार्थी जब आपके पास आएगा, तो आप उसको नौकरी में कतई नहीं लेंगे, क्योंकि वो प्रचलन में नहीं है। लेकिन हुँ, मेरा हुँ, एक हुँ। सबमिशन है, जी, जी। अभियंता शब्द प्रचलन में हुँ। आया, इंजीनियर की जगह हुँ, अधिशासी हुँ, अभियंता बिल्कुल, प्रयोग में आ रहा है। बिल्कुल। तो क्या हम मीडिया में इन शब्दों का प्रयोग करके उसको प्रचलन में नहीं, अभी अग्रवाल साहब ने कहा पिताश्री माताश्री हुँ, प्रचलन में हुँ। नहीं है, लेकिन जब रामायण महाभारत धारावाहिक आए तब ये माताश्री पिताश्री प्रचलन में आ गए। तो आज हमें इन शब्दों का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ना होगा, तभी ये भाषा शब्द ये प्रयोग में आएंगे। जनसत्ता, हुँ, हुँ। उसमें काफी, अब उन्होंने लॉकडाउन प्रयोग नहीं किया, पूर्णबंदी का प्रयोग किया। अब आप पूर्णबंदी करेंगे, 2-4 बार छपेगा तो ये प्रचलन में आ जाएगा शब्द।
तो मुझे लगता है कि मीडिया की जिम्मेदारी क्या ये है कि जो लोग प्रचलन में कर रहे हैं उसी का प्रयोग करें, या कहीं हमारी जिम्मेदारी उसको संस्कारित करने की भी है। विवाद मुझे लगता है यही है ना। बिल्कुल और ये बात सही है कि भाषाई जो उपेक्षा है वो बहुत है। जब मैं अखबार में पढ़ता हूँ या टीवी पे सुनता हूँ कि मौसम खराब होने की संभावना है, मेरे ख्याल आपको 90% प्रयोग यही मिलेंगे। आशंका शब्द हम भूल चुके हैं। आशंका होना चाहिए वो बिल्कुल जो आप फ्लाइट में जाएंगे तो एयर होस्टेस भी यही कहती है कि मौसम खराब होने की संभावना है, सीट बेल्ट बांध लीजिए। एक बार तो मैंने टोक दिया उनको कि ये संभावना का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, वो समझे नहीं क्योंकि सब अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं। तो मुझे कहती है कि आप मोबाइल पे हमारा वो जो आपके पास आता है ना मैसेज, उस पर कंप्लेंट कर दीजिए कि ये सही नहीं है प्रयोग। तो ये चुनौती है, जब हम उस बच्चे को बताएंगे नहीं तो वो इसी तरह की शब्दावली का प्रयोग करेगा। आपके जब आप राजेंद्र माथुर या उस दौर की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है भाषाई शिथिलता इतनी नहीं थी। कादम्बरी में कितने समय तक भाषा बोध करके एक वो कॉलम छपता था। यहाँ पत्रिका में जब चंद्रगुप्त वार्ष्णेय जी थे उन्होंने कॉलम लिखा, राजदूत में लिखा। जनसत्ता ने अच्छी हिंदी करके कॉलम छापा लंबे समय तक। हिंदू ने नो योर इंग्लिश करके कॉलम छापा। तो यहाँ भाषाई विवाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल प्रयोगों को लेकर के मीडिया में किस तरह की सतर्कता बरती जानी चाहिए। क्या संपादकीय डेस्क, या तो अब तो स्थिति ये हो गई है तरुण जी, जब हम क्लास में भाषा की बात करते हैं तो लोग हम पे हंसते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो। ये वो मैं अखबार मैं करके दिखाता है। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि चुनौती ही यही है कि हम भाषा को आचरण में नहीं ला पा रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हिंदी हम बात करते हैं सिर्फ 2 दिन, 10 जनवरी को बात हुई और 14 सितंबर को बात हुई। वो तो है, लेकिन हमारे हर आयोजनों में अक्सर इस बात पर चिंता प्रकट होती है। और मैंने तो बहुत सारे आयोजन किए हैं और मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं वो सक्रिय रूप से जुड़े रहे। और लेकिन समस्या वही है कि वो सभी सुविधा के नाम पे या बोलचाल की भाषा के नाम पे उन प्रयोगों को प्राथमिकताएं दे रहे हैं। संजीव साहब जी, आप कुछ। हाँ साहब, हाँ तरुण संजीव जी, संजीव जी, जी। सुषमा स्वराज जी अपने व्याख्यान में अक्सर बोलती थी, ये इस हिंदी सम्मेलनों के, जो आप बात कह रहे हैं कि शब्द जो है कठिन या सरल नहीं होते, बिल्कुल प्रयोगों शब्द पर निर्भर परिचित करता होते है। हैं या अपरिचित होते हैं। जी। जब हम मुल्क आजाद हुआ तो हमारे पास प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं था, हम्म। संसद शब्द भी नहीं था। तो बोले उसमें हम प्राइम मिनिस्टर शब्द यूज करते थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूज करते थे, पार्लियामेंट यूज करते थे। आज हमारे पास राष्ट्रपति शब्द है, आज हमारे पास प्रधानमंत्री शब्द है, आज हमारे पास पार्लियामेंट के लिए संसद शब्द है। ये सारे शब्द हमने गढ़े और उसको लोक विमर्श में ले गए, जनता ने उसे स्वीकार किया, उसका अच्छा प्रसाद मिल रहा है। तो मूल लेकिन ये सर है मीडिया कि ने खारिज ये कर दिया, अब भी वो एमपी लिखते हैं, मीडिया सांसद को नहीं इसको लिखते हैं। चलाना पड़ा, मीडिया के इसको बस चलाना वही पड़ेगा। जैसे आप वही। देखिए कि क्रिकेट की शब्दावली हमने जस की तस ले ली अंग्रेजी की हिंदी में, पर मराठी ने पूरी शब्दावली गढ़ी है अब मराठी भाषा में। वो तो प्रधानमंत्री भी उपयोग नहीं करते, पंत प्रधान लिखते हैं, और मराठी की पूरी शब्दावली उन्होंने क्रिकेट में गढ़ी। तो हमको शब्द गढ़ने भी पड़ेंगे, नए शब्द अपनाने पर पड़ेंगे, और जो शब्द हमारे पास नहीं है उसको अन्य भारतीय भाषाओं से हमको ग्रहण करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उससे भाषा का अपने आप विस्तार और विकास होगा। जो बात तरुण जी कह रहे थे कि हम तो बड़े समावेशी लोग हैं, तो वो समावेशी जो हमारा भाव है वो हमें दिखना भी चाहिए। हम बोलियो शब्द लेके आ सकते हैं। 100%। वो एक विकास कुमार करके हैं पार्टिसिपेंट, वो शायद कुछ पूछना चाहते हैं, अभी चैट बॉक्स में देखा मैंने। विकास कुमार, अपना परिचय दीजिए और वीडियो ऑन कीजिए और जो सवाल हो आपका पूछिए आप। उन्होंने लिखा है कि हम भी सवाल पूछ सकते हैं, तो आमंत्रित हैं। सर चैट बॉक्स में एक सवाल है ऑलरेडी, उन्होंने लिख दिया है, मेरे अच्छा। सवाल के केंद्र ये में सवाल है, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। मेरे सवाल के केंद्र में हाँ। विशेष रूप से तरुण शर्मा सर होंगे। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई में खुद को कंटेंट राइटर के तौर पर विकसित किया है, इसलिए मेरा सवाल मीडिया लाइन में आर्थिक दृष्टि से कंटेंट राइटर का पेशा कितना सुरक्षित है? क्या हम आर्थिक दृष्टि से अपनी पेशा के साथ दूसरे पेशा एमबीए बीटेक के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे? क्योंकि आज हिंदी दिवस है, इसलिए मेरा दूसरा सवाल यह है कि आखिर क्यों मीडिया के लिए कंटेंट राइटिंग में अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना हमें बाध्य करता है? हाँ, इसमें मेरा जवाब जो मैं आपको देना चाहता हूँ विकास जी, अभी आपने देखा होगा, अभी बात चल रही थी कि कंटेंट राइटर्स का काफ़ी ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है। आप देखिए टाइम्स नाउ तक जो है वो हिंदी में उन्होंने डिजिटल अपना लॉन्च किया है। तो ये एक मतलब हिंदी का आप इसे भले ही व्यावसायिक इनका वो कहिए कि हमारी जो हिंदी मार्केट है और हर हाथ में मोबाइल और ऐप्स आ गई हैं, तो एक मार्केट डेवलप हो गया है। तो वो भी हो सकता है कि वहाँ पे मार्केट दिखता है उनको।
लेकिन कंटेंट राइटर का अच्छा एक है, बहुत अच्छा फ्यूचर है इसके अंदर, मुझे लगता है। लेकिन अगर आप एमबीए या बीटेक से अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको मल्टीलिंगुअल होना पड़ेगा। उसके अंदर मतलब ऐसा ही नहीं है कि हिंदी, आपको लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। तो ये तो जब अनुवाद करेंगे तो उसके लिए भी ज़रूरी होती है चीज़ें, तो ये तो बेहद ज़रूरी है, आई थिंक होना चाहिए। तरुण जी, आपसे एक सवाल आशीष रंजन पूछना चाहते हैं। जी, जी। मैं और मेरे हाँ। मित्र चाहते हैं कि दैनिक भास्कर में वो आने वाले फेलोशिप से जुड़ें, तो केवल हिंदी भाषा के ज्ञान के साथ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कामचला हुई। हम इस फेलोशिप से जुड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, अभी पिछले दिनों हम लोग ने करीब 25 फेलोज़ जो हैं, उनको हमने अपॉइंट किया था और 25,000 स्टाइपेंड के साथ। मतलब वनस्थली से, हरिदेव यूनिवर्सिटी से और तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हमने एक ड्राइव चलाया था, पूरा प्लेसमेंट ड्राइव, और उसमें हमारे रिक्रूटमेंट सेल ने करीब 25 लोगों को हम लोग ने वो किया था। तो ये जुड़ सकते हैं, बट उसके लिए हमारा जब वो प्लेसमेंट ड्राइव होता है उसी के अकॉर्डिंग ही पूरा लेकिन तरुण जी, प्रोसेस है। आशीष रंजन बिहार से जुड़े हैं, वो जयपुर में नहीं है, वो नहीं, बिहार नहीं, में नहीं, है। नहीं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार में भी हमारे कई जी। लोग हैं। ये एक्चुअली क्या है, कॉर्पोरेट का प्लान था, डायरेक्ट कॉर्पोरेट हेड ऑफिस से भोपाल से ये पूरा चला था। तो उसमें पूरे देश भर में हमने कई फेलोज़ जो हैं, ट्रेनीज़ जो हैं, उनको हमने अपॉइंट किया था। बिल्कुल। जी। चलिए साहब, और जी, कोई जी, मैं सवाल? एक हाँ, छोटी सी हाँ, बात अग्रवाल स्पष्ट साहब। करना चाह रहा हूँ। जी। जब मैं मीडिया की और खासतौर से अखबारों की भाषा की बात करता हूँ, तो मैं किसी एकदम शुद्धता की अपेक्षा नहीं करता हूँ। मैं ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करता हूँ कि गारंटी अगर आ गया है या अगर कंप्यूटर आ गया है तो उसका हिंदी रूप ही वहाँ प्रयुक्त हो। ये जब हम एक वैश्विक दुनिया में रह रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आएंगी और अब तो सारी दुनिया में इस बात को स्वीकार किया जाता है कि विदेशी शब्दों को भी भाषा में लिया जाना चाहिए। वो कोई विवाद का या असहमति का मुद्दा नहीं है। लेकिन मेरी जिज्ञासा इस बात को लेकर है कि बहुत सारे अखबारों के ये जो नगर परिशिष्ट होते हैं, उनमें जिस तरह की भाषा, जिसको एक सम्मानजनक नाम बाद में दे भी दिया गया, इंग्लिश। अब एक उदाहरण मुझे हमेशा याद रहता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक कर दी। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के बजाय राजस्थान विश्वविद्यालय क्यों नहीं लिखा जा सकता, और स्टूडेंट्स के बजाय विद्यार्थी क्यों नहीं लिखा जा सकता, और स्ट्राइक की बजाय हड़ताल क्यों नहीं लिखा जा सकता। तो जब ये सवाल मेरे मन में आता है तो एक अपना अनुभव भी मुझे याद आता है। मैं एक संजीव जी जानते भी हैं, एक अखबार के लिए बहुत लंबे समय तक अनुवाद का काम करता रहा हूँ, और वहां मुझे कहा जाता था कि आप उसमें अंग्रेजी शब्दों का तड़का जरूर लगाएं। ये जो तड़का लगाने वाली बात है, वो तड़का लगाते लगाते मुझे लगता है कि दाल तो गायब हो जाती है, तड़का ही तड़का रह जाता है। खासतौर से नगर परिशिष्टों की भाषा जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो उसमें का, की, के अलावा सब कुछ अंग्रेजी होता है। वो बात मुझे चिंताजनक लगती है। उसके औचित्य को मैं समझना चाहता हूँ। नहीं सर, अभी पिछले मैं इसमें थोड़ा-सा मतलब इंग्लिश को लेकर के, अभी पिछले दिनों में कुछ बदलाव काफ़ी हमने करे हैं, जिसमें हमने बिल्कुल ये कोशिश की है कि बिल्कुल ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। भाषाई तौर पर, क्योंकि जिसको इंग्लिश पढ़ना होगा तो वो इंग्लिश ही इस्तेमाल करेगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लेगा। तो उसको इंग्लिश के लिए मतलब आप, हाँ, जैसे सिटी भास्कर और आपने नगरीय परिशिष्ट की बात करी है, तो सिटी भास्कर का कंटेंट जो है, वो हमारा और जेन ज़ी जो है, उन लोगों को हम लोग थोड़ा कनेक्ट करने के लिए, भाषा को थोड़ा आसान बनाने के लिए और बातचीत और बोलचाल की भाषा को हम शामिल करते हैं, ताकि थोड़ा यूथफुल रहे और उसमें ऐसा नहीं हो कि डिटैच कर जाए बिल्कुल रीडर जो है। और आप देखिए कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर आपने कुछ पढ़ा, जैसे मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, जहाँ एडिटिंग थोड़ी-सी पुअर हुई, थोड़ी-सी भारी हुई, तो वो डिटैच हो जाएगा और फ़िल्म जो है, वहीं वो हो जाएगी। वैसे खबर के साथ भी है। मैं बात-बेबाक लिखता हूँ एक कॉलम, तो मैं उसमें ध्यान रखता हूँ कि किस्से, कहानियाँ, छोटे-छोटे किस्से हो जाएँ, छोटी कहानियाँ हो जाएँ, कविता हो जाए, कटाक्ष हो जाए और तथ्य जो हों, इनका समावेश करके, ताकि एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। भाषाई तौर पर उसमें भी अगर आप संस्कृत शब्द या कठिन जो शब्द जो हैं, उस शब्दावली का, शब्दकोश का इस्तेमाल करेंगे, शब्दावली का, तो आप लोग मतलब कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। तो ये कोशिश रहती है कि कैसे चीज़ों को हम कनेक्ट करें, क्योंकि आजकल के दौर में 2 मिनट में खारिज कर देंगे। आप देखा होगा कि
18 पन्ने का अखबार होता है, उसमें आदमी करीब हमारे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1000 लोग जो हैं वो जयपुर के अंदर काम करते हैं, 1000 लोग। तो आदमी 18 पेज का अखबार पलट करके बोलता है कि घटिया अखबार है, कुछ भी नहीं है आज इसमें। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे रीडर को एंगेज करें। हमने कई सर्वे कराए हैं कि 5 टू 7 मिनट फ्रंट पेज पे रुके रीडर, वो भी नहीं रुक रहा है। तो ये विडंबना हिंदी को लेकर है कि रीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं कम। और मैं पिछले दिनों एक डेटा देख रहा था कि बुक्स जो हैं उनकी सेल बढ़ गई है, बट रीडरशिप कम हो गई है। तो ये भी एक विडंबना है कि अलमारियों में सजाने के लिए, हिंदी साहित्य की बात करें या मैं इंग्लिश लिटरेचर की भी बात करूंगा, तो बुक्स जो हैं खरीदी बहुत जा रही हैं लेकिन पढ़ी नहीं जा रही। तो ये विडंबना है। और पढ़ने का आजकल जो शिफ्टिंग है ना पॉडकास्ट वाली, और जो जितने भी यूट्यूब से हैं और तमाम तरह के जो हमारे पास न्यूज सोर्स हैं, या इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, और वहां पर शिफ्टिंग ज्यादा हो गई है। तो रीडरशिप के लिए खतरा है। और जब तक सही देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, विजुअल इंप्रेशन 3 मंथ्स तक आपके ब्रेन में रहता है। अब विजुअल इंप्रेशन जब भी कुछ चीज पढ़ेंगे, आज मैं देख रहा हूं तो मेरे को याद आएगा कि हाँ, आइडेंटिटी कैसी है। भानावत सर ने हेडफोन लगा रखा था, दुर्गादास सर स्ट्रेट में बैठे थे, मफलर कैरी किए हुए थे। तो ये चीज, ये मेरे को दिखेगा, हमेशा मेरे को याद रहेगा। लेकिन होता क्या है कि हम गलत पढ़ते हैं, उच्चारण गलत है, सिकर को हम सिक्कर बोलते हैं। ये तो खैर, जैसे मैं पंजाब से हूं तो पंजाबी लोग क्या बोलते हैं कि रुपिंदर सिंह, धर्मिंदर, जितेंद्र। तो ये जैसी गलत बोलेगा वैसे ही गलत लिखेगा, और उस पर अगर सही पढ़ेगा नहीं तो सही लिख भी नहीं पाएगा। तो ये जो अभी अगली पोध आ रही है, जो यहाँ विडंबना क्या है, मैं जब पढ़ता था तब हमें बोल बोल करके मैडम वो सिखाती थी। शशि बलाना हमारी एक टीचर थी जो हिंदी हमें बोल बोल के बताती थी कि सर हम हिंदी। कल भी मैंने किसी को बताया कि परसों अखबार में एक मिस्टेक छूट गई, अनुमति की जगह अनुमित छप गया। तो मैंने किसी को बताया कि देंगे तो आप ऐसे चेक किया कीजिए कंटेंट, एक एक अक्षर पढ़ेंगे तभी वो सही हो पाएगा। लेकिन अभी जो नई पोध आ रही है, हमारे पास एम्प्लॉइज तो वही आ रहे हैं अब जो रिटायर हो गए हैं, जो एक्सपर्ट जो हैं, और उसके बाद जो नए आ रहे हैं वो उतने आ रहे हैं। जी बीच में बहुत मुश्किल होगा आपको। अग्रवाल साहब, आपका माइक ऑफ कर लीजिए। अग्रवाल साहब, हाँ जी, मेरा आपका म्यूट हो माइक गया। ऑन है, वो आवाज आ रही है इधर। हाँ हाँ तरुण जी। ओके सॉरी। और अभी पिछले दिनों जैसा कि एक चर्चा भी चल रही थी कि शिरोरेखा का बहुत बड़ा योगदान है। जो शिरोरेखा किसको बोलते हैं, जो ऊपर एक लाइन लगती है वाक्य के ऊपर, अक्षरों के ऊपर। जैसे वो खाली मतलब खाली, और खाली मतलब रिक्त हो गया, ब्लैंक हो गया। पीली येलो, और पीली। तो हम जो है भाषाओं के अंदर तक हम नहीं पहुंच रहे हैं, उसको हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऊपरी तौर पर, फौरी तौर पर उपसर्ग और प्रत्यय नहीं मालूम। सशक्तिकरण में एडिटोरियल पेज पर सशक्ति में टी छोटा आ जाता है, जबकि करण जब जहां पे प्रत्यय लग जाता है वहां पे मात्रा बड़ी हो जाती है। जागरूकता हो, भली सशक्तिकरण हो, नियमितीकरण हो, उदारीकरण हो, तमाम तरह के शब्द हैं। ये हिंदी की बेसिक नर्चरिंग में प्रॉब्लम है। जो मतलब आप जो गुरुजन हैं, मेरे वरिष्ठ हैं सबसे, तो मैं ये, हालांकि मैं कई बार क्या होता है कि लाइब्रेरी के अंदर ले जा करके इंटर्न्स को मैं हिंदी की क्लास देता हूँ। ये विडंबना है कि उनको ये बताना पड़ता है कि आप जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखिए। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स के ऊपर स के ऊपर वो रफ आएगा, बट ट के ऊपर वो लगता है। ये तो ज्यादातर गलतियां मतलब ये की जाती हैं, ये मिस्टेक्स होती हैं अमूमन। तो खैर ये चीजें हैं, ये दारोमदार आप लोगों पे है, लेकिन मैं ये भी ध्यान रखूंगा आइंदा। मेरी टेक अवे इस मीटिंग से मेरा ये रहा है कि हम हिंदी को प्रमोट ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। जहां पे अनावश्यक अंग्रेजीकरण जरूरत नहीं है तो हम नहीं करें। ये हमने बहुत हद तक कम भी किया है, बट अभी मतलब अगर एडिटर के तौर पर मैं बात करूं, एक अखबार के स्थानीय संपादक के तौर पर, तो इसको हम जरूर करना चाहिए। और इसके लिए मैं थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि मैं जरूर करूंगा इसको, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अरुण जी, आपके इस सकारात्मक टिप्पणी के साथ। चलिए अपन इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं क्योंकि समय काफी हो गया है। इसके पूर्व कि मैं विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर आयुषी चोपड़ा को यहाँ आमंत्रित करूं, मैं सर, प्रियंका मुझे जी से अनुरोध करूंगा।
सर आप हाँ। ये जो आज चर्चा चल रही थी उसको सुनते हुए मैंने छोटी सी कविता लिखी है सुनते हुए। जी जी हुडा सर जरूर सुनिएगा क्योंकि आप साहित्य जी प्रेमी जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ डॉक्टर उषा। हाँ, तो मैंने अभी ये जो चर्चा चल रही थी वो चलते चलते ही जो बातें हमारे आज के एमिनेंट स्पीकर्स जो हैं उन्होंने जो बोली है उनमें से लिखी है, तो मैं इसको जरूर पढ़ना चाहूंगी। दिल से दिल को जोड़ती है हिंदी, बच्चे को माँ बाप से जोड़ती है हिंदी, गुरु और शिष्य का आधार है हिंदी, भावों को सही अर्थ देती है हिंदी, बिगड़ी हुई बात को बनाती है हिंदी, इश्तिहारों को स्वीकार्यता देती है हिंदी, बाजार का मुनाफा देती है हिंदी, बाजार को मुनाफा देती है हिंदी, साहित्य को आत्मा देती है हिंदी, संस्कारों को ओढ़नी पहनाती है हिंदी, रिश्तों के धागों को संवारती है हिंदी, संस्कार सरकारों को सरकार बनाती है हिंदी, युवाओं को मजबूत बनाती है हिंदी, अन्य भाषाओं को का स्वागत करती है हिंदी, मीडिया को सशक्तिकरण देती है हिंदी, हुनर को रंगती चमकाती है हिंदी, अवसरों का पिटारा खोलती है हिंदी, हम सभी को एक दूसरे का बनाती है हिंदी। जी हाँ, खुशबू हर ओर बिखेर कर महकती महकाती है हिंदी, दिल से दिल को जोड़ती है हिंदी। बहुत बढ़िया, दिल को बहुत दिल बढ़िया, से बहुत जोड़ती है हिंदी, सुंदर अपनी मिठास सबों के दिल में घोलती है हिंदी। बहुत बढ़िया। मान्यवर मान्यवर मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ कहें। मान्यवर ऐसा है कि आज के युग में पब्लिक स्कूल के अंदर हमने अक्सर पाया बच्चों की हिंदी तो ना के बराबर है। उनको पढ़ने को कह दो तो उनसे पढ़ा नहीं जाता, स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ सकते, तो इसका भविष्य क्या होगा आगे? बहुत आसान सी बात चलिए। है, हम सब कुछ स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन पे नहीं छोड़ सकते। घर में हम हिंदी बोलने का सिस्टम रखें तो शायद बच्चे हिंदी आसानी से बोलेंगे। एक अभिभावक के रूप में आप प्रेरित कीजिए, वही जी उसका उपाय है। चलिए अपन अब इस चर्चा जी को सर। विराम देते हैं और मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे तीनों जो विशेषज्ञ हैं उनको ई बुके और सॉरी ई स्मृति चिन्ह और ई सर्टिफिकेट जी सर। भेंट करें। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है। प्रियंका आप सर्टिफिकेट 1 बाय 1 उसमें से शेयर कीजिए। हाँ, प्रियंका जी मेरे ख्याल पहले संजय द्विवेदी जी का सर्टिफिकेट और उनका ई मेमेंटो। हाँ जी बोलो। मैं नहीं अशोक जी अपन समाप्त कर रहे हैं अब। हम एक बार उसको पहले देखेंगे वोट ऑफ थैंक्स कर लें, जो हमारे अतिथि लोग जाना चाहते हैं वो हाँ अच्छा ठीक हो है, जाएंगे। धन्यवाद उसके बाद धन्यवाद आप। आपको सर, जी बहुत अशोक बहुत धन्यवाद। जी। सो थैंक यू सो मच। कुछ तकनीकी व्यवधान आ नहीं रहा है सर्टिफिकेट सर। हाँ हाँ अब आ आ गया। गया, अब आ गया है। आप अच्छा देखिए। अग्रवाल साहब का है अभी। हाँ कोई बात नहीं, पहले ये कर लेते हैं ठीक डॉक्टर है, कोई प्रसाद दिक्कत जी। नहीं है। ये सब सर्टिफिकेट्स और स्मृति चिन्ह किसी हम्म। सर्टिफिकेशन के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे अतिथिगण ऐसे हैं जिनको किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि इस बात की याददाश्त है, इस बात की मेमोरी है कि फॉर दिस फैबुलस लेक्चर ऑन विश्व हिंदी दिवस आप सब हमारे पाठ थे और आपने हमें हिंदी मीडिया में हिंदी चुनौतियां और संभावनाओं से अवगत कराया, और हम सब कैसे मिलकर इसको और बेटर कर सकते हैं, हिंदी को और प्रचलित कर सकते हैं, ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू बनावत सर। चलिए अब इस आयोजन के समापन के लिए आभार प्रदर्शन के लिए मैं विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आयुषी चोपड़ा से अनुरोध करूंगा कि वे सभी का आभार प्रदर्शन करें। आयुषी जी। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग टू ऑल द डिग्निटरीज। वैसे तो कायदे में कहा जाए तो मुझे ये धन्यवाद प्रस्ताव, जिसको मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि क्या मैं संजीव सर की तरह या डिग्निटरीज की तरह हिंदी बोल पाऊंगी, जो कि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, तो मुझे हिंदी में देना चाहिए, बट मेरे अंदर खुद में एक कंफ्यूजन और वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि कुछ ना कुछ तो शब्द इंग्लिश में निकलेगा ही।
तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू। संजय द्विवेदी सर को सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अग्रवाल सर जो हमारे साथ जुड़े, तरुण शर्मा सर, प्लीज थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का कि आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम सबको बताया। बस यही कहना चाहूंगी कि सही लास्ट में हुडा सर ने बोला कि हमें घर से शुरू करना चाहिए हिंदी। हम इसमें स्कूल कॉलेज को ब्लेम नहीं कर सकते। एक बहुत ही छोटे से बच्चे की मैं मदर हूँ, जब वो कोई भी शब्द हिंदी में कहता है तो मैं उसको कहती हूँ नहीं बेटा 20 होता है, नहीं बेटा इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। तो हम जैसी मदर्स ही इस चीज को प्रमोट करती हैं, जो आज मुझे सुन के लगा कि मुझे अपनी इस प्रैक्टिस को बंद करना चाहिए। हमें लगता है बाहर जाके हमारी इंसल्ट होगी या ऐसा होगा, तो हमें इस चीज को बंद करना चाहिए। तो बनावत सर ने जो ये वेबिनार का टॉपिक संजोया, उसके लिए स्पेशल थैंक्स टू यू बनावत सर, हुडा सर एंड ऑल माय डिग्निटरीज, गेस्ट एंड द पार्टिसिपेंट्स। नो डाउट इतना अच्छा तो नहीं बोल पाऊंगी हिंदी में, बट स्टिल मैं ये कहना चाहूंगी मेरी टेक्निकल टीम का भी मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ, उषा मैम का जो हमारे साथ जुड़ी हुई है और जिनके बिना ये वेबिनार होना पॉसिबल नहीं था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू। वी विश कि आप हमारे नेक्स्ट कमिंग वेबिनार्स में भी हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़ते रहें। थैंक यू। आगामी वेबिनार की सूचना आपको सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग पहुंचा देंगे और आप सभी ईमेल के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं। हाँ, ईमेल्स यदि आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो ईमेल्स भी आ जाएंगे आपके पास। एक तो मैंने तो अचानक से ये ऑन किया है क्योंकि हमारा एक ग्रुप है। I think we can stop अशोक the जी, recording अशोक and जी, continue. अशोक जी, चैट विंडो में मैं एक मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, आप इस पे अपनी